वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। Yes, Shifa, last 10 years in fact are more than enough. 10 साल के आप पास पेपर्स कर लें, that's good enough. Given that you're getting a good score consistently, of course, that goes without saying. अच्छा, ये बताएं आप लोगों का पेपर कैसा हुआ? You guys had English today, right? बेहतरीन, काफ़ी इजी था अपार्ट फ्रॉम वर्ड मीनिंग. देखो, एग्ज़ाम से पहले ये फीलिंग आती है, यू ऑलवेज फील अंडर प्रिपेयर्ड, but the best way to tackle that is to just go through the stuff that you've already done. For example, go through the past papers that you've already solved, go through the notes, ठीक है, do all of that, and feeling underprepared a day before the exam is normal. It's not something you should be worried about. Okay, it happens to everyone. वो एक fear of the unknown होता है. You don't feel unprepared. It's just that you have this fear of the unknown के पेपर में क्या आएगा. So it's okay if you've prepared well enough, then you should probably exam से एक दिन पहले तो I always recommend my students to relax. Don't try and overstress yourself. Don't try and overdo it, वरना वो फिर backfire हो जाता है. Exam से एक दिन पहले I do not recommend that you guys test yourself. I do not recommend that you guys go over the past papers. Solve past papers. Just go over the stuff that you've already done. Sir, differentiation integration कराएंगे आप? Yes, differentiation integration is lined up. I recently shared a calendar जिसमें मैंने सारे topics और उनके days और timings, dates और timings मैंने share किए हैं. तो उसमें differentiation integration भी lined up है. ठीक है, I shared that calendar on Facebook, on my Instagram, YouTube पे भी मैंने डाला हुआ है. So उधर आप देख सकते हो. ठीक है. Anyway, so let's start, shall we? Okay, so basically आज का agenda है graphs of inequalities. ठीक है, graphs of inequalities is one of the topics that you guys have requested for, along with the other topics of course. ठीक है, so
we're gonna go over the concepts first. Concepts इसके ज़्यादा नहीं है, and then once we're done with that, then we're gonna do some past paper questions. ठीक है? So maths P1 on 16th May. How long? Any tips? Just go over the notes, okay? There are no. Just go over the notes. Do yearly past papers. अभी तो बहुत time है आज. You have almost 10 days. What did you guys write for drifting? हाँ, so just go over the past papers. Go over the notes. अपने मार्क्स चेक करें क्या आ रहे हैं आपके, और प्लीज़ टाइम करें. अभी मैंने कल इंस्टाग्राम पे अपने एक पोल डाली थी जिसमें आई आस्क्ड यू गाइस वेदर यू गाइस टाइम योरसेल्फ व्हाइल सॉल्विंग पास्ट पेपर्स. सो सरप्राइजिंगली a lot of you said that you don't time yourself, which is not very encouraging. You should definitely time yourself, and I did plan on mentioning that कुछ और मैंने सोचा था कि मैं उस पर कमेंट करूँ. इनफैक्ट आई विल कमेंट. 54% of you said that you don't time yourself, which is not very good. You should be timing yourself ताकि आपको एटलीस्ट जब आप एग्ज़ाम में फाइनल एग्ज़ाम के लिए बैठें तो फिर आपको पता हो ना कि is the time, are you able to finish the paper in the given time or not. Okay, all right, चलें. Yeah, you should not be focusing on topicals right now. You should just be focusing on yearly. Only if you have like a specific topics that you're not very good at, then to fill that gap, you should be focusing on topicals. ठीक है? Topicals तो आपने अभी क्या? Topicals तो आपने February में ही छोड़ देने थे. February onwards आपने yearly पे आ जाना था. The second year syllabus is complete. You should just move to yearlies. In fact, you shouldn't even wait for the syllabus to complete. जैसे ही आपका syllabus 70-75% complete हो, आप yearly past papers पे आ जाएं. Anyway, so अब start करते हैं. ठीक है? So अब देखो, I can't just straight away jump to graphs of inequalities. The reason why a lot of you struggle with graphs of inequalities is because of one thing, and that's what I've noticed, and that is कि आपका एक topic जो है उसके concepts weak होते हैं. और वो कौन सा topic है? वो है आपका none other than coordinate geometry. Okay, so one topic that you got to make sure is on point, that is coordinate geometry. ठीक है? तो पहले ज़रा हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन करेंगे. सही है? फिर विल मूव ऑन टू एनीथिंग एल्स. ऑलराइट, ओके. अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले ज़रा स्टार्ट करते हैं विथ ग्रेडियंट. अब ग्रेडियंट जो है वो सिर्फ निकालना आना काफ़ी नहीं होता. ग्रेडियंट हाँ ठीक है, शेडिंग भी कवर हो जाएगी. ठीक है? ऑल ऑफ दैट इज कवर्ड, सो डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, सो लाइक आई सेड, ग्रेडियंट जो है वो सिर्फ निकालना जो है वो काफ़ी नहीं होता. ग्रेडियंट के 4 केसेस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, एंड यू शुड नो what a line of with positive gradient looks like, what a line with negative gradient looks like, so on and so forth. So gradient का जो फॉर्मूला होता है वो होता है y2 minus y1 over x2 minus x1. ठीक है? something we all know very well. सही है? और ग्रेडियंट बेसिकली होता है क्या? इट्स द रेशियो ऑफ राइजेस टू रन. ठीक है? ग्रेडियंट इट just tells you how steep your line is. Okay, Eid Mubarak Zainab. Okay, now there are 4 cases of gradient that you must know at all times. Okay, क्योंकि आपके पास अक्सर सवाल आता है जिसमें आपको इनइक्वालिटीज़ दी हुई होती हैं और इक्वेशंस दी हुई होती हैं. ठीक है? और ये नहीं पता होता कि कौन सी इक्वेशन जो है वो किस लाइन की है. तो वो हम कैसे डिटर्मिन करते हैं? उसमें से एक डिटर्मिन करने का जो तरीका होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट. ओके, नाउ अब इफ यू हैव अ लाइन दैट लुक्स लाइक दिस, ओके, दिस लाइन विल हैव अ पॉजिटिव ग्रेडियंट. ठीक है? इसकी इक्वेशन किस तरह की होगी अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी लाइन जो है एज यू मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इफ योर लाइन इज राइजिंग, that means the gradient of this line is positive. ठीक है? चेक करने का तरीका क्या होता है? चेक करने का तरीका हमेशा ये होता है कि हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करते हैं. As you move towards the positive x axis, we're not talking about the equation right now. Please bear that in mind. अभी let's not jump to conclusions right now. Let's not rush into things. We're just talking about the gradient and what the line is going to look like. Okay? अच्छा, this live is for 1 hour. Well, it's for as long as it takes. Okay? इसलिए मैं कभी कोई एंडिंग टाइम नहीं बताता. इट्स फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स, बट या होपफुली 1-1.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा. ठीक है? ओके, नाउ इफ़ यू हैव अ लाइन दैट लुक्स लाइक दिस, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज़ अ फॉलिंग लाइन. ओके, अ लाइन लाइक दिस, इसमें एज यू मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यू विल नोटिस दैट योर लाइन इज ग्रेजुअली फॉलिंग.
Okay, so a line like this has negative gradient. Okay, अच्छा, फिर आते हैं आपके रिमेनिंग 2 केसेस पे. So here's your x-axis, here's your y-axis, here's your x-axis and here's your y-axis. ठीक है, फिर आती है आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन. ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन का याद रखो ग्रेडियंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है. ठीक है, सो व्हेनेवर यू सी अ हॉरिजॉन्टल लाइन just remember that its gradient is equal to 0. Okay, and whenever you see a vertical line just remember that its gradient is equal to infinity. Okay, so these are 4 cases that you must always remember. Okay, इसमें से भी जो सबसे ज़्यादा important है ना वो ये आपके. ठीक है, these 2 are extremely important. Okay, you should be able to look at a line and decide कि कौन सी लाइन का ग्रेडियंट जो है वो पॉजिटिव होगा और कौन सी लाइन का ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव होगा. अब ये कहाँ काम आएगा, किस तरह से इसका सवाल आएगा, होल्ड ऑन टू दैट. आई एम श्योर आपके जहन में ये आ रहा होगा, बट जस्ट होल्ड ऑन टू दैट. ठीक है, यू विल फाइंड योर आंसर टू मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस वंस वी डू पास्ट पेपर क्वेश्चंस. है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अच्छा, अब ग्रेडियंट के ज़रा हम एक आध एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि ज़रा हम फेमिलियर हो जाएं और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो नोट्स हैं, इसके ज़रा वो लिख लेते हैं. ठीक है, सो हियर इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल. ये कि अगर आपके पास एक पॉइंट है A 0 -2 और एक पॉइंट है B, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1 and 5. राइट, सो ग्रेडियंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले अपने कोऑर्डिनेट्स को लेबल कर लें. ठीक है, ताकि ज़रा आप खुद ना कंफ्यूज हो जाएं. सो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को अगर आपने x कोऑर्डिनेट को x1 कह दिया, सो ऑटोमेटिकली द नेक्स्ट कोऑर्डिनेट विल हैव टू बी y1. सिमिलरली इफ you've called the other x coordinate x2, so automatically the y coordinate has to be y2. Okay, so if you want to find out the gradient of this line, so that can be done by doing 5 minus -2 over -1 minus 0. Please take extra precaution of the sign. 5 minus -2 is positive 7. 7 upon -1 is going to be -7. ठीक है, so that means this line has a negative gradient. So graphically अगर हम बात करें, so it's going to be a falling line. Okay, फिर gradient से related ज़रा कुछ important notes हैं वो ये लिख लें, याद रखिएगा. वो ये कि number 1, parallel lines have the same gradient. Number 2, collinear points. collinear का क्या मतलब होता है ज़रा बताइएगा. Sure I can. So while I'm writing this, I want you guys to tell me what does the term collinear mean. Points lying on the same straight line. Good job, Saad. Yes. Okay. फिर आते हैं, फिर let's talk about parallel. ठीक है, और perpendicular, sorry. So gradient of a perpendicular line can be found by taking the negative reciprocal. अच्छा, अब एक चीज़ मैं बताता चलूँ, सिंस दिस इज़ नॉट इंटायरली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सिंस हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो नेगेटिव, वो आपके ग्राफ्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ पे है, तो मैं इसके एग्जांपल क्वेश्चंस नहीं करा रहा. ठीक है, however if you want to revise these concepts, ठीक है, उसके लिए हैव अ वीडियो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से सर्च कर लो. ठीक है, यू विल फाइंड अ वीडियो जिसमें मैंने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. ठीक है, रिलेटेड टू पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस एंड इवन कोलिनियर पॉइंट्स. ठीक है, तो वहाँ से आपका ये वाला रिवीजन हो जाएगा. अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा. सही है, ओके. नाउ अब दूसरी जो आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, इज दैट यू शुड बी एबल टू फाइंड द इक्वेशन of a straight line. ठीक है,
ओके अब इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन की जो जनरल फॉर्म है ज़रा वो याद रखिएगा, वो है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे m क्या होता है आपका, m होता है आपका ग्रेडियंट, ठीक है, और c क्या होता है आपका, c होता है आपका y इंटरसेप्ट, जिसका थ्योरेटिकली मतलब क्या होता है, द पॉइंट एट विच द लाइन कट्स द y एक्सिस. Sir, is this only going to be coordinate geometry live stream? No, this is not going to be coordinate geometry live stream. Like I said at the beginning, अभी हम coordinate geometry का revision कर रहे हैं, so that when we go to graphs of inequalities, you guys are familiar with these concepts, okay? And I also said the reason why most of you struggle with graphs of inequalities is because the concepts of coordinate geometry are not on point. Okay, now up just like gradient, there are 4 cases of a straight line also, okay, exactly the same 4 cases. So you may have a line that's upward sloping, you may have a line that's downward sloping, you may have a horizontal line, and you may have a vertical line, okay? So here's your x-axis, y-axis, x-axis, y-axis, x-axis, y-axis. ठीक है, अच्छा अब साथ में ज़रा ना हम शेडिंग करना भी शुरू कर देंगे. So pay close attention. Sir, I just did the past papers from 2017. You mean 2017 onwards or just like 2017? If it's 2017 onwards, that means 2017, 18, 19, 20, 21. हाँ 5 साल के हो गए, that's good enough. ठीक है, देखो it's not always about the number. Please remember, it's not always about the number. It's not always कि आपने 5 साल के किए, 10 साल के किए. It also depends on your concepts. It also depends on how well or unwell you're doing in the past papers that you're solving. Okay, it depends on that also. And make sure that you're timing yourself. So if you're getting good marks, if your average is good, then 5 saal kya, even 3 years are enough, okay? Okay, now, so in the first case, remember, इस line का जो gradient होगा, वो क्या होगा, वो positive होगा. That means कि इसकी जो equation होगी, वो होगी y equals to mx plus c करके. Yes, this is for IGCSE also, okay? In the second case, the gradient of this line is going to be negative, और इसकी equation किस तरह की होगी, इसकी equation होगी y equals to mx plus c. Okay. Now in the third case, in third and fourth cases is where I've noticed students struggle a lot. But just remember, it's just remember कि horizontal line जो है आपकी, उसका gradient जो है हमें पता है कि 0 होता है, और इसकी जो equation होती है, in order to find out the equation of a straight line, the horizontal line, all you need to know is the point at which the line is cutting the y-axis. ठीक है, अच्छा, if you can see the point at which the line is cutting the y-axis is, let's say that is c, तो in that case जो हमारी equation होगी इस line की, वो होगी y equals to c. Okay, the only thing you should know about a horizontal line is the point at which the line is cutting the y-axis. अगर वो 2 पे कट कर रही है तो इसकी equation होगी y equals to 2. अगर वो 3 पे कट कर रही है इसकी equation होगी y equals to 3. 0 पे कट कर रही है तो इसकी equation होगी y equals to 0. ठीक है, As far as a vertical line goes, vertical line का gradient हमने अभी देखा infinity होता है, और इसकी जो equation होती है, let's say ये vertical line x axis को b पे कट करिए, where b could be any value, it could be 1, 2, 3, -1, -2, -3. इसकी equation क्या होगी, इसकी equation होगी x equals to b. Okay. अब now it's, yes, we've memorized this, but it's also important to understand. If I look at a horizontal line up close, I can see that the x coordinate will consistently change. The x coordinate will be something else at this point, it's going to be something else at this point, it's going to be something else at this point. However, the one thing that will not ever change is the y coordinate, and the y coordinate will always be c. Therefore, इस line की जो equation होगी वो होगी सीधा सीधा y is equals to c. And if you talk about a vertical line, in a vertical line you can see that the y coordinate will consistently change. The one thing that will not ever change in a vertical line is the point at which the line is cutting the x-axis. Therefore, इसकी जो equation होगी वो क्या होगी, वो होगी x is equals to b. ठीक है, अच्छा, अब इसके साथ साथ ज़रा 2 चीज़ें याद रखिएगा. नहीं, देखो, इसको हम लिखते हैं m ही हैं, but
m is negative. So when you replace m with a negative value, it's automatically going to be negative. Okay, we don't put a negative sign of our own. m अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव से खुद ही रिप्लेस हो जाएगा. ठीक है, हम हमेशा प्लस ही लिखते हैं. अच्छा, अब एक इसके साथ ज़रा, एक नहीं इनफैक्ट दो इंपॉर्टेंट नोट लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो ये कि नोट नंबर 1, the equation of x-axis is y equals to 0. सही है. And remember the equation of y-axis is x equals to 0. ठीक है, इसमें प्लीज कंफ्यूज नहीं हो जाना. This is I know it's kind of tricky to remember कि x है तो y equals to 0 है, y है तो x equals to 0 है. ठीक है, but just remember कि y axis पे कोई भी पॉइंट लिया जाए तो उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा. ठीक है, let me show you guys. Okay, so देखो, ये आपका x एक्सिस आ गया, ये आपका y एक्सिस आ गया. x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट, उसकी एक x वैल्यू होगी, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा. ठीक है, फिर थोड़ा आगे जो x वैल्यू चेंज होगी, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा. देयरफॉर x एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो होती है y इक्वल्स टू 0. इसके साथ साथ ये भी याद रखो कि एनी पॉइंट, दिस इज की पॉइंट नंबर 3, एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस will have coordinates. इसको मैं थोड़ा लेफ्ट पे मूव कर लेता हूँ. x comma 0, and just like that any point on y axis will have coordinates 0 comma y. ठीक है, yes, live stream will be uploaded, don't worry about that. Okay, अच्छा, अब देखो, now that we know कि एक लाइन का ग्रेडियंट किस तरह का होता है और एक लाइन की इक्वेशन किस तरह की होती है. ठीक है, अब उसके बाद समटाइम्स व्हाट विल हैपन इज, देखो यहाँ पे तो आई हैव रिटन इट वेरी नाइसली y इक्वल्स टू mx प्लस c. ओके, बट दैट्स नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी द केस. समटाइम्स व्हाट विल हैपन इज कि आपको लाइन में y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट द ग्रेडियंट इज एंड व्हाट द y इंटरसेप्ट. और उसमें से भी जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है टू अंडरस्टैंड व्हाट द ग्रेडियंट इज. ठीक है, अब उसकी भी जरा कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं बिफोर वी फाइनली लुक एट द शेडिंग वाला पार्ट. ओके, नाउ अब लेट्स से आपके पास, और ये भी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आई हैव नोटिस्ड दैट स्टूडेंट्स टेंड टू स्ट्रगल अ लॉट, सो मेक श्योर यू गाइस पे क्लोज अटेंशन. इफ देयर इज एनीथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड, फील फ्री टू आस्क. ओके, सो लेट्स से आपके पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू -2x प्लस 5. ठीक है, और इसमें आपने क्या डिटरमिन करना है, इसमें आपने डिटरमिन करना है व्हाट द ग्रेडियंट इज एंड व्हाट द y इंटरसेप्ट इज. ओके, सो दैट्स फेयरली सिंपल. इसमें अगर हम इसको कंपेयर करें विद y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो हम बता सकते हैं आंख बंद करके कि ग्रेडियंट जो है वो -2 है और y इंटरसेप्ट जो है वो 5 के बराबर है. ठीक है, दैट्स अ नो ब्रेनर, नथिंग टू वरी अबाउट. एक ही स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा. ओके, समटाइम्स इट माइट गेट लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड. वो कैसे, you might have something like, let's say 3y is equals to 5x plus, let's say 9. Okay, in this case if you want to find out what the gradient is and what the y-intercept is, then it's not as it is simple, but make sure that you don't fall for the trap and you end up saying that the gradient is 5 and the y-intercept is 9. Okay, now in fact I want you guys to tell me what is wrong with this. Okay, now this is wrong. Okay, but I want you guys to tell me what is wrong with this. Or do you think this is not wrong at all? Yes. Okay, so I've noticed this happen with a lot of students. Make sure it doesn't happen to you. वो ये कि आपने क्या करना है, आपने y को subject बनाना है. ठीक है, the reason why this is wrong is because y is not the subject. Okay, so let's make y the subject. When you make y the subject, this becomes 5x plus 9 upon 3. Now you can skip this step and do it directly and write it as 5 upon 3x plus 9 upon 3, which then will be simplified and written as 5 upon 3x
प्लस 3. ओके, नाउ वी कैन सेफली से कि हाँ भाई हमारा ग्रेडियंट जो है वो 5/3 के बराबर है और जो हमारा y इंटरसेप्ट है वो 9/3 विच इज इक्वल टू 3 के बराबर है. ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर दिस डजंट हैपन टू यू गाइस. ऑलराइट, अच्छा फिर लेट्स डू two more examples, then we'll move on. Suppose you have x minus, suppose you have x minus 3y equals to 2. Okay, अब इसमें क्या करें, इसमें again this is not going to be once, I mean we can't determine the answer in just one step, so we'll have to do it step by step. So I would suggest that you make y positive and you bring 2 over to the left hand side and take 3y over to the right hand side. So ये हो जाएगा आपका x minus 2 is equals to 3y. Let's write this nicely. So ये हो जाएगा 3y is equals to x minus 2. Now y is not the subject yet, so be careful. So y is going to be equal to, now the coefficient of x is 1. When you have nothing, remember it's 1. Okay, so ये हो जाएगा आपका 1/3x minus 2/3. Okay, now like I said, you could have done this, you could have added one more step over here and done it like y is equals to x minus 2/3, and then you could have done this step. Okay, but that's entirely up to you. वैसे मेरा आपको मशवरा ये होगा कि जितना आप elaborate करके करें उसको उतना आपके लिए अच्छा है. So gradient is 1/3 and y intercept is minus 2/3. ठीक है, okay, now एक और example करते हैं and then we'll move on and we'll do the shading part. Okay, sir, can there be a question on the shoelace method? No. Remember in math, अच्छा, for those of you who are wondering कि shoelace method क्या है, shoelace method is a method that is used in ADMATS to calculate the area of a shape, but this will not happen in math. In math, if you're asked to find out the area of any shape, then you just have to plot it. Okay, प्लॉट नहीं, इनफैक्ट स्केच करें उसको, स्केच करेंगे तो आपको खुद ही बेस और हाइट का आइडिया हो जाएगा, एंड देन यू कैन, नॉर्मली इट्स अ ट्रायंगल, मोर देन मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अ ट्रायंगल, सो यू कैन यूज दैट टू फाइंड द एरिया. ओके, okay, I don't know what that means. In which situation do we input 0 as a value for x to get y intersect? Well, when you have to find the y intercept, that's it. When the question is asking you to find the y intercept, that's when you input 0 and find the y intercept. Okay, alright, number 4, let's just do one more example and then we'll move on. So let's say you have 2x plus 3y and that's it. 2x plus 3y equals to 0. Okay, so what are you going to do over here? 3y को पहले subject बनाओ, so 3y is equals to minus 2x, y को subject बना लो, so ये हो जाएगा y equals to minus 2/3x plus, that's it. 0 अगर आप खुद से लिखना चाहें just to prove a point कि y intercept 0, so you can do that, otherwise you don't really have to. Okay, and now you can say that your gradient is minus 2/3 and your y intercept is 0. Okay, if you're talking about transformation matrices, then transformation matrices are no more in the IGCSE syllabus. Okay, now let's just do the final part, and that is shading wala part. Uske baad we'll move on and do what? And do some past paper questions. ठीक है. If there's anything you guys don't understand from what we've covered, 3y should be y. Yeah, 3y should be y, that's why it is. Okay, now, so you have a line that goes like this, you have a line that goes like this, you have a horizontal line, you have a vertical line. Okay, अब इसमें ना सारी चीज़ें हम merge करके देखेंगे. Okay, let me just align it to the center. अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम ज़रा शेडिंग वाला पार्ट देख रहे हैं. ओके, does a distinction matter on your grade or how you attempt the paper? It's about how you attempt. No, it does not matter on your face. It's about how you attempt the paper. ठीक है. अच्छा, so क्या कह रहा था मैं? हाँ. So basically, a line like this will have a positive gradient. और इसकी equation क्या होगी? इसकी equation होगी y equals to mx plus c. अब देखो, अब हर लाइन, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन हो तो उसमें दो रीजन्स होते हैं. ठीक है, एक लाइन के ऊपर वाला होता है और एक लाइन के नीचे वाला होता है. ठीक है, एंड लेफ्ट और राइट होता है. सही, उसमें से एक ग्रेटर होता है, एक लेसर होता है. ठीक है, अब हाउ डज दैट वर्क? दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो अब हम ये करेंगे
कि हम ग्रेटर वाले रीजन को ग्रीन से शेड करेंगे, ठीक है, और हम लेसर वाले रीजन को जो है ना वो रेड से शेड करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको ज़रा कलर कोड करते हैं। ये आ गया ग्रीन, ज़्यादा लाइट तो नहीं है, नहीं तरफ बहुत लाइट है, थोड़ा डार्क कर लेते हैं। हाँ, सो ये आ गया ग्रीन और ये आ गया हमारा रेड, ओके। ओके, ना एक्स और वाई एक्सेस को ज़रा लेबल कर लेते हैं, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। ओके, ना अब आप लोगों ने ना मुझे बताना है, वांट यू गाइस टू हेल्प मी आउट हियर, ओके। मैं एक रीजन को 1 लेबल कर रहा हूँ, एक रीजन को 2 लेबल कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपने मुझे बताना है कि इसमें से, थैंक यू, इसमें से which one of them is going to be greater than region and which one of them is going to be lesser than region, ठीक है। So if you think one is the greater, then let me region, or if you think one is the lesser region, let me know, okay. ठीक है, ठीक है, yes, you're right, one is indeed the greater than region and 2 is indeed the lesser than region. So that means 1 को हम शेड करेंगे ग्रीन से और 2 को हम शेड करेंगे रेड से, ठीक है। अच्छा, इसमें मुझे बताएं ज़रा 1 कौन सा रीजन है, 2 कौन सा रीजन है। And about this line will have negative gradient और इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी y equals to mx plus c, okay. What is the reason please? Okay, देखो, so here's the reason. So yeah, basically let's say ये y intercept क्या है, ये y intercept आपका, let's say it's 1, okay, hypothetically speaking, alright. Now where do you think above or below will the y values be greater than 1? Okay, so let's say if this is 1 hypothetically speaking, ठीक है, ऊपर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, ठीक है। So in an upward or downward sloping line we're always looking at y, okay. So you can see for as long as we're above the line, alright, doesn't matter where we are, but for as long as we're above the line, all the y values are going to be greater than 1, okay, and for as long as we're below the line, all the y values are going to be lesser than 1. Okay, so that is how we decide the greater than or the lesser than region. Okay, I'm glad you asked. इससे I'm sure बाकी सबका भी concept clear हो गया होगा, ठीक है। Alright, what about case number 2? In this case, what do you guys think? I think you guys have already given me the answer, ठीक है। In this case, 1 is the greater than region and 2 is the lesser than region for the exact same reason. Okay, 1 is the greater than region. The region above the line is the greater than region, and the region that's below the line is the lesser than region. Okay, सर आपके ख्याल से मिनिमम कितनी परसेंटेज रिक्वायर्ड होनी चाहिए पास होने के लिए इस बार? भाई देखो, ये जो सवाल होता है ना कि ग्रेड थ्रेशोल्ड क्या होगा, पेपर आसान होगा या डिफ़िकल्ट होगा, ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। आई मीन ये हो सकता है कि कोई तुक्का लगे और वो तुक्का लग जाए, ठीक है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द थ्रेशोल्ड, ऑलराइट। सो आई कांट आंसर दैट क्वेश्चन। Okay, now as far as this horizontal line is concerned, इसमें आप मुझे बताएं, let's say this is 1 and this is 2. Which region do you think is the greater than region and which region do you think is the lesser than region? Okay. ठीक है, ठीक है. So 2 is the greater than region for the exact same reason कि लाइन के ऊपर सारी जो y वैल्यूज़ होंगी वो ग्रेटर देन लेट्स से ये 2 के बराबर है, ठीक है। सो लाइन के ऊपर जितनी भी y वैल्यूज़ होंगी वो 2 से ग्रेटर होंगी और लाइन के नीचे जितनी भी y वैल्यूज़ होंगी वो 2 से लेसर होंगी, ओके। बट इस लाइन का वैसे ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट 0 होता है। इस लाइन की इक्वेशन रिमेंबर इज y इज इक्वल्स टू c। मेरा नाम क्या है? वेल यू गाइस डोंट नो माय नेम, ओके। व्हाट डू यू थिंक माय नेम इज? वो तो मेरे चैनल का नाम है। So there's an article where it's also on the R. I'm not sure I understand what you're trying to say. अच्छा, ये कौन स्पैमर है भाई? इसको ज़रा okay. Hang on, let me just take care of this guy.
Yeah, my name is Saad. Okay, now so as I was saying, इस लाइन का जो ग्रेडियंट होगा, इस लाइन का ग्रेडियंट वी जस्ट सॉ इन्फिनिटी होगा, और इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो होगी x इज इक्वल्स टू b, वेयर b इज द पॉइंट एट विच द लाइन इज कटिंग द y एक्सिस. ओके, नाउ इसमें चलो इसका रीजन मैं खुद ही बता देता हूँ. इसमें आपका जो राइट साइड वाला रीजन होगा वो ग्रेटर देन रीजन होगा, ठीक है, प्लीज रिमेंबर. और जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला रीजन होगा वो लेसर देन रीजन होगा. ओके, दिस टाइम हाउएवर we're not looking at y, we're looking at x. ओके, अच्छा, अब एक चीज़ ज़रा याद रखें सब, वो ये कि एक इम्पॉर्टेंट मैं यहाँ पे नोट लिख रहा हूँ, एंड दैट इज हाउ डू वी गेट अ डिस्टिंक्शन इन मैथ्स? बाय स्टडीइंग, आई गेस. व्हाट डू यू थिंक? ओके, जोक्स अपार्ट, नॉट जस्ट स्टडीइंग, जो फाइन डिटेल्स होती है ना आपने उसका ख्याल रखना होता है. मेक श्योर दैट यू राउंडिंग ऑफ योर आंसर्स करेक्टली, मेक श्योर दैट यू नॉट स्किपिंग अ स्टेप. सो you do all of that and then you're potentially capable of getting a distinction. Okay, Achha. Of course practicing, studying, that goes without saying, but if you're already aiming for distinction, that means कि आपकी preparation already अच्छी है, you just want to make it even better, so you do that by just focusing on the little details. Okay, अच्छा, अब ये एक कुछ नोट ज़रा जहन में रखिएगा, वो ये कि जब आपके पास सॉलिड लाइन होगी, ठीक है, तो आपने कौन सा इनइक्वालिटी साइन यूज़ करना है? आपने ग्रेटर देन इक्वल टू यूज़ करना है या लेसर देन और इक्वल टू यूज़ करना है, ठीक है. अच्छा, और उससे भी पहले आपका प्री रिक्विजिट क्या होना चाहिए कि y पॉजिटिव हो, ठीक है. अब उसका क्या तरीका है वो मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है. 3 significant figures बेटा, 3 significant figures, नॉट 2 significant figures, 3 significant figures. जो पेपर के शुरू में इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं उसमें लिखा होता है आपका, ठीक है. अच्छा, फिर इफ यू हैव अ डॉटेड लाइन, ओके, अच्छा, नॉट जस्ट अ डॉटेड लाइन, समटाइम्स यू विल हैव अ सॉलिड लाइन बट द क्वेश्चन विल से इनसाइड द रीजन. ओके, सो इफ द क्वेश्चन हैज यूज्ड द वर्ड इनसाइड द रीजन, अब वो रीजन ट्राइंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. So in that case आपने कौन सा साइन यूज़ करना है? In that case आपने ग्रेटर वाला साइन यूज़ करना है या लेसर वाला साइन यूज़ करना है, ठीक है. सर आपको मैथ्स का सर होना चाहिए बेटा, आई एम अ मैथ टीचर. ओके, नाउ अब ये जो है ना, ये आपने जहन में रखना है, ठीक है. ये 4 केसेस दे वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद दीज नोट्स, ठीक है. ओके, उसके बाद ये वाली चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जो लाइन है उसकी इक्वेशन किस तरह की होगी. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज एंड मेक श्योर दैट यू हैव दिस मेमोराइज. एक दफ़ा समझ लो और फिर मेमोराइज कर लो, ठीक है. या अगर आप एक दफ़ा अच्छे से समझ ही लेते हैं फिर आई ऑनेस्टली डोंट थिंक यू विल हैव टू मेमोराइज दिस. ओके, अच्छा, ना अब हम आते हैं किस पे? अब हम आते हैं ज़रा इसके पास्ट पेपर क्वेश्चंस पे, ठीक है. अच्छा, अगर मैंने इसको पहले से सॉल्व किया हुआ है तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है. जी, ना अच्छा, ये बताएं, स्ट्रेट लाइन प्लॉट करनी सबको आती है, और शुड आई गो ओवर दैट आल्सो? यू गाइस नो हाउ टू प्लॉट अ स्ट्रेट लाइन? प्लॉट की बात कर रहा हूँ, हाँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्केचिंग स्ट्रेट लाइन. आई थिंक आई विल जस्ट गो ओवर दैट एनीवे. ओके, कॉन्सेप्चुअली यस, बट अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो ज़रा हमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा. यस, आई विल जस्ट गो ओवर इट एनीवे, ठीक है. अच्छा, सो दिस कॉन्सेप्ट इज हाउ टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. अब कोई भी लाइन बनाने के लिए, ठीक है, लाइन दैट हैज एक्स एंड वाई, उसके लिए आपको क्या चाहिए होते हैं? आपको पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है. सो लेट्स से आपने लाइन बनानी है y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1, ठीक है. अच्छा, अब आपने जो पॉइंट्स लेने हैं वो आई नो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि एक नेगेटिव, एक जीरो, एक पॉजिटिव. यस, दैट्स राइट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट समटाइम्स आपको उस वाली स्ट्रैटेजी पे ना थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. अच्छा, कब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ये मैं आपको अभी बता देता हूँ. अब जैसे लेट्स से आपका ग्राफ ऐसा है, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है. बल्कि एक काम करते हैं, इसको कॉपी करके ना, ठहरो, जस्ट गिव मी अ सेकंड.
जो हमारा नॉर्मल ग्राफ होता है उसी पे करते हैं ज़रा इसको। हाँ, सो इन केसेस लाइक दिस आपको जो है ना वो जो हम बचपन से करते चले आ रहे हैं कि एक नेगेटिव लिया, एक ज़ीरो लिया, एक पॉजिटिव लिया, उस पर ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है? अच्छा मुझे बताएं कि इसमें वाई शुड आई नॉट टेक अ नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, जब तक मैं इसको लेबल कर रहा हूँ आप लोग मुझे सोच के बताएं कि इसमें हम x की नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं ले सकते। व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? Which app am I using to write on the iPad? Well, I'm using this app called PDF Expert. I've been using this since day one. I know there are better options out there, but it's just that I haven't gotten used to them. And at this point, it's too early to. I mean, it's not the right time to experiment with new apps. No idea to be very x को 0 करके y निकालो, then y को 0 करके x. ठीक है, that's a good idea. ठीक है। सो कोई भी लाइन बनाने के लिए वैसे तो आपको क्या चाहिए होते हैं? आपको 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, अच्छा अब वो 2 पॉइंट्स निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, वो 2 पॉइंट्स निकालने का जैसे अभी यहाँ पे किसी ने सजेस्ट किया कि हम x को 0 करके y कोऑर्डिनेट निकाल लें, y को 0 करके x कोऑर्डिनेट निकाल लें, दैट्स एब्सोल्युटली राइट, स्पॉट ऑन। ठीक है, नथिंग रॉन्ग विद दैट। द अदर वे इज द मोर कन्वेंशनल वे इज कि आप x की जगह रखें 0, x की जगह रखें 1 और 2। अच्छा, नाउ द आंसर टू द क्वेश्चन दैट आई जस्ट आस्क्ड, व्हाई आर वी नॉट टेकिंग नेगेटिव वैल्यूज, दैट्स बिकॉज कि हमारा जो x है वो अगर नेगेटिव में हम ले भी लें तो हम उसको प्लॉट नहीं कर सकते। ठीक है, वी कांट प्लॉट दैट, सो और वी कांट मार्क दैट, व्हिच इज व्हाई इट्स नॉट अ गुड आइडिया। अच्छा, अब इसको आप प्लग इन करें जरा, 2 into 0 is 0, 0 minus 1 is -1। अच्छा, अब ये भी एक प्रॉब्लम हो गई है। ये प्रॉब्लम क्या हो गई? प्रॉब्लम ये हो गई कि हम -1 y में नहीं दिखा सकते। सही है, तो इंस्टेड तो कोई बात नहीं, नथिंग टू वरी अबाउट, हम 1 लेते हैं, 2 into 1 is 2, 2 minus 1 is 1, and let's take 2, 2 times 2 is 4, 4 minus 1 is 3, okay? 2 पॉइंट्स आ गए। लाइक आई सेड, 2 पॉइंट्स एक लाइन बनाने के लिए काफ़ी होते हैं। जो हम 3 पॉइंट्स लेते हैं वो 3 पॉइंट्स हम इसलिए लेते हैं फॉर फर्दर एक्यूरेसी। तो लेट्स टेक अ थर्ड पॉइंट जस्ट इन केस, ताकि ज़रा हमारी लाइन जो है वो एज एक्यूरेट एज पॉसिबल बने। So the third point that I'm going to take is x की जगह 3, y की जगह 3 रखेंगे तो let's see क्या आता है। 2 into 3 is 6, 6 minus 1 is 5। ठीक है, तो 5 आ गया। So when x is 3, y is 5, there you go। लाइन बनाने से पहले just sort of hover your pencil over all the points to make sure कि सारे एक लाइन पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। लाइन पे आ रहे हैं तो बस आपने क्या करना है, आपने लाइन को ज्वाइन करके, अच्छा प्लीज़ लाइन को ज्वाइन करके, ये नहीं कि आपने लाइन बस इतनी सी बना दी, 3 पॉइंट्स आए तो आपने इतनी सी लाइन बना दी। लाइन को ज्वाइन करके आपने क्या करना है, आपने लाइन को ज्वाइन करके ज़रा एक्सटेंड भी करना है। ठीक है, जितना भी आपको ग्राफ दिया हुआ है इतना एक्सटेंड करना है। ये भी नहीं कि आप इतना एक्सटेंड करने को पेज से ही बाहर चली जाए, बट जितने भी आपके एक्स और वाई एक्सिस में आपको जगह दी हुई है आपने उसको वहाँ तक एक्सटेंड करना है। For x we can take 1 2 3, yep that's exactly what I did, I took 1 2 3 because after taking 0 we realized कि -1 तो हम इसमें मार्क नहीं कर सकते। अच्छा, अब ज़रा मैं आप लोगों से कोई जनरल सवाल पूछने लगा हूँ, वो ये कि सपोज करें आपने लाइन बनानी है y = 2। अब y = 2 की लाइन बनाने के लिए क्या हम x और y के पॉइंट्स लेंगे, और अगर लेंगे तो क्यों लेंगे, और अगर नहीं लेंगे तो क्यों नहीं लेंगे? The problem with negative points is that हम उसको मार्क नहीं कर सकते। Okay, we don't have enough room to mark negative values of x. Okay, that's what the problem is. अच्छा, एक चीज़ ज़रा प्लीज़ सब क्लियर कर लें कि स्ट्रेट सारी लाइनें होती हैं। ओके, दिस विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन। यस, ओके, ऑल लाइन्स आर स्ट्रेट, दिस लाइन वुड बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, okay, now so for this remember we don't have to do anything at all we have to do is just draw a horizontal line such that it cuts the y axis in two and that's it, we're done। okay, इसके लिए आपको बिल्कुल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, लेट्स से इसी पे मुझे बनानी है एक लाइन, इसको हम कलर कोड कर देते हैं, चलो इसको हम ब्लू से कर देते हैं। अब लेट्स से मुझे इसी पे एक लाइन बनानी है x = 3, so what am I going to do? So is it necessary that the line starts from the origin? No, that's not necessary at all that the line starts from the origin. The line
आपने बस 3 पॉइंट्स मार्क करने और फिर उन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक्सटेंड करना है, राइट? अब वो जहाँ पे भी जाके टच हो, ओरिजिन पे जाके टच हो, किसी और वैल्यू पे जाके टच हो, that's not your concern, okay? Yeah. So this line x is equals to 3 is going to be a vertical line such that it's cutting the x-axis at 3, okay? That's the only thing you need to worry about and that's it, okay? अच्छा, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं. इस एग्जाम्पल को ज़रा मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रखूँगा, ओके? सपोज यू हैव 2y is equals to 3x minus let's say 1, okay? Yeah, in fact let's say 4. 2y is equals to 3x minus 4, ठीक है? अब ये लाइन ड्रॉ करने से पहले ज़रा मुझे ये बताएं कि पहला स्टेप क्या होगा हमारा. What is my first step going to be? इनफैक्ट इसको -4 भी नहीं, इसको हम -2 कर लेते हैं. Does the perpendicular rule? No, perpendicular वाली चीज़ यहाँ पे नहीं अप्लाई हो रही. Yes, Mariam, good job. We're gonna make y the subject here. Okay. So we'll make y the subject here. Alright, चलो हमने y को सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है. इसमें हम ज़रा थोड़ा नेगेटिव वाली चीज़ भी इंक्लूड कर लेते हैं. अच्छा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 -1 -2. ओके, नाउ अब y को सब्जेक्ट बनाने का मतलब है कि ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2 अपॉन 2. अब जरा हम इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2x माइनस 2 अपॉन 2 जो कि 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है. अच्छा, नाउ दैट वी हैव मेड y द सब्जेक्ट, मैंने यहाँ पे एक स्टेप स्किप किया है, बल्कि मैं काम करता हूँ. लेट्स बी गुड स्टूडेंट्स, लेट्स नॉट स्किप अ स्टेप. मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो कि मैंने क्या किया. 3 अपॉन 2x माइनस 2 अपॉन 2 जो कि अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 3 अपॉन 2x माइनस 1, ओके. अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे जब आप पॉइंट्स लेंगे ना, तो आपने पॉइंट ज़रा थोड़ा स्मार्टली लेना है, ठीक है. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आई विल टेल यू व्हाट आई मीन बाय दैट. What I mean by that is कि यहाँ पे we can't just take 0, 1 and perhaps, I mean -1, 0 and 1, okay? I mean we can do that, लेकिन उससे जो हमारी लाइन बनेगी ना, उसमें तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है. In that case, in this case, what we're gonna do is हम 0 लेते हैं, ठीक है. If I plug in 0 in place of x, तो 3 upon 2 times 0 क्या हो जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा. 0 minus 1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा. Please, अगर आपको if this is something you feel is risky for you to do it mentally, then I would suggest कि आप इसको mentally ना करें, आप इसको step by step करें, ठीक है. मतलब you actually plug in 0 and then work it out, ठीक है. या अगर ये पेपर 2 में आ जाए, so you know that's great, आप अपना कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं. Yes, Ratib, I hope I'm pronouncing your name correctly. These are exactly the points that I'm going to take. I'm going to take 0, 2 and 4, okay. Now the reason for that is very simple. Reason for that is कि यहाँ पे हमारे पास अगर हम नोट करें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है 3 upon 2x, okay. Now whatever value of x I plug in over here is going to get divided by 2, okay. So what value of x should I plug in over here? I should plug in a value that is easily divisible by 2. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि मैं यहाँ पे ऐसी value prefer करूँगा plug in करना that is basically a multiple of 2. Multiple of 2. Okay. How is that going to help me? That's going to help me in such a way that I will end up with not an answer in decimal. In fact, I'll end up with an answer that's an integer value, okay. And that way it will be easier for me to mark, okay. Now let's अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू में plug in कर सकता हूँ? I can plug in 2 or 2. Okay. I think बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है. ठीक, इज इट गुड नाउ? आर वी बैक? ओके, ग्रेट. ऑलराइट, सो 3 times 2 is 6, 6 minus 1 is 5, so that means जब x 4 है तो y 5 के बराबर है, ठीक है. थैंक यू गाइस. ऑलराइट, सो 0 पे -1 is right over here, 2 पे 2 is going to be right over here, and 4 पे 5, let's just make some room for 5. So 4 पे 5 is right over here. ठीक है, 3 पॉइंट्स आ गए. अब आप क्या करें, अब आप इसको ज्वाइन कर दें,
join it with the help of a straight line, and that's it. Okay, there you go. सर लास्ट पार्ट समझा दें, स्ट्रीम नहीं चल रही थी. ओके मैं दोबारा बता देता हूँ. I'll just explain the whole thing all over again. So once you've made y the subject, make sure that you look at your equation carefully. अगर आपकी equation में x के साथ कोई denominator है जैसे कि यहाँ पे था, ठीक है, so in that case make sure that the value that you plug in are multiples of whatever denominator that you have over here. Okay, so if you have 2 over here, तो देखो मैंने यहाँ पे x की जगह 0 के साथ 2 और 4 प्लग इन किया है. ठीक है, in some cases ये वाली चीज़ जो होगी ना वो absolutely unavoidable होगी. So in some cases you will have to plug in values that will give you decimal, but जहाँ पे आप ये चीज़ avoid कर सकते हो वहाँ पे avoid करो, फ़ायदा हो जाएगा आपका. Screen blur है, is that the case with everyone? Because मेरे पास तो stream health is good. ओके तो फिर एक काम करो, सेटिंग्स पे जाओ, वहाँ पे ऑप्शन होगा टू चेंज एंड उसको आप चेंज करके you can fix it. Okay, all right, now okay, so with this out of the way, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं इसके पास पेपर क्वेश्चंस. ठीक है, अच्छा ये नोट्स मैं आप लोगों के साथ इसके साथ इसके शेयर कर दूंगा विद डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा. यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर. ठीक है, ओके. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम अक्टूबर नवंबर 2021, पेपर 1 वेरिएंट 1. ठीक है, सो ये समझो लास्ट सेशन का जो पेपर था उसी सेशन में आया था, और बिल्कुल इससे मिलता जुलता सवाल आया था 2018 में भी. ठीक है, अभी आप लोग कोई फॉर्मूला ना लगाने बैठ जाएगा कि अगर 2018 में आया था, 2021 में आया था तो 2022 में आएगा या नहीं आएगा. बट क्वेश्चंस लाइक दीज, इसके वैसे ही जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी सिमिलर होते हैं. सो यू गाइस डोंट हैव टू डू ऑल ऑफ दैट. जस्ट do like 3-4 years of past paper questions and you'll understand the kind of questions that you're going to get. Okay, now अब इससे स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे आपसे कह रहे हैं the region R is defined by these inequalities. अच्छा अब देखो यहाँ पे कहीं भी ना वो आपको शेड करने को नहीं बोल रहा. समटाइम्स शेडिंग जो है ना वो इन दिस केस हम अपने लिए करेंगे. Examiner just wants to see where the letter R is. Okay, so if the letter R is in the correct place, doesn't matter whether you've shaded or not. कुछ लोग शेड करके आइडेंटिफाई करते हैं wanted region को, कुछ लोग शेड करके आइडेंटिफाई करते हैं unwanted region को. Okay, so that's entirely up to you. If the examiner has asked you to find label region R, then that's all you have to do. ठीक है. सर P2 फॉर IGCSE में इसका मैक्स कितने मार्क्स का सवाल आ सकता है. देखो ये मैं नहीं कह सकता. ठीक है, आई कांट से कि मैक्सिमम कितने मार्क्स का सवाल आ सकता है, बट येस this could be from 3 to 6 marks. ठीक है, alright. Now x is greater than or equal to 1 and lesser than or equal to 5. अब मुझे एक बात बताओ, question for you guys, x is equals to b किस तरह की लाइन होती है. Now please do not say straight like I said, सारी लाइनें होती हैं. मुझे ये बताओ कि what kind of line is this? Is it a vertical line? Is it a horizontal line? Is it an upward sloping line or a downward sloping line? 6 marks में इसलिए कह रहा हूँ because sometimes this question comes with coordinate geometry also. Yes, it's going to be a vertical line. Good job, Hussein. And it's going to be a vertical line such that, अब देखो यहाँ पे आपके पास 2 वैल्यूज हैं. ठीक है, अब इन 2 वैल्यूज का मतलब कि आपने शेडिंग के लिए ना आपको रेफरेंस के लिए एक लाइन चाहिए होती है. तो आप पहले क्या करेंगे, पहले आप लाइंस बनाएंगे. कहाँ बनाएंगे, एक लाइन आप बनाएंगे x इक्वल्स टू 1 पे और एक लाइन आप बनाएंगे x इक्वल्स टू 5 पे. तो x इक्वल्स टू 1 पे जब लाइन बनाओगे वो ऐसी बनेगी और x इक्वल्स टू 5 पे जब लाइन बनाओगे वो ऐसी बनेगी. अच्छा, साथ साथ आपने लाइन बनाने के से पहले इनफैक्ट आपने ये देखना है कि आपकी लाइन जो बनेगी वो कैसी बनेगी. इज इट गोइंग टू बी अ सॉलिड लाइन और इज इट गोइंग टू बी अ डॉटेड लाइन. In this case, it's going to be a solid line because the question has used the word the inequality along with equal to. ठीक है, अच्छा फिर बात हो रही है किसकी, फिर बात हो रही है इसकी. इसको मैं ब्लू से कर रहा हूँ, 0 and 4. अब ये होगी आपकी y equals to 0 and y equals to 4. अब मुझे बताओ कि y equals to c किस तरह की लाइन होती है. ये 4 marks definitely gift है. Yes, y equals to 0 is a horizontal line. Agreed. But y equals to 0 क्या बनाने की ज़रूरत है या नहीं है? Do I really need to draw y equals to 0 or not really? What do you think?
What do you think? What do you think? Why do I not have to draw y equals to 0? चलो y equals to 4 तो बना देते हैं while we're at it. And this also, by the way, is going to be a solid line because it's the x axis. ठीक है, अगर हम बनाएंगे भी तो x axis के ऊपर ही आएगी. चलो just for the heck of it बना देते हैं, ठीक है, but there is no need to do that. Alright? Okay. अच्छा, अब शेडिंग पे बाद में आएंगे, पहले ज़रा सारी लाइनें एक जगह कर लेते हैं. फिर आते हैं इस पे y is greater than or equal to 3 minus x. अब ये वाली लाइन बनाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी. ठीक है, any line that has x and y in it requires a bit of effort from you guys, and that is कि आपको इसके points लेने होंगे. ठीक है, I mean if you can do that mentally that's great, okay, but I wouldn't suggest that. I would suggest that you be good students and do it step by step. Okay, so यहाँ पे रखते हैं x, यहाँ पे रखते हैं y. 0 रखोगे तो 3 आएगा, 1 रखोगे तो आपका 3 minus 1 is 2 आएगा, 2 रखोगे तो 3 minus 2 1 आ जाएगा. ठीक है, so 0 पे 3 is right over here, 1 पे 2 is right over here, and 2 पे 1 is right over here. Okay, now you join this with the help of a straight line, और ये लाइन भी क्या बनेगी, ये लाइन भी आपका solid line ही बनेगी. Oops. Okay. Does x always be on the top period? What do you mean by that, top period? I'm not sure I understand. अच्छा, यहाँ पे भी आप लिख लीजिएगा कि ये भी आपकी एक solid line बनेगी. ठीक है. Good afternoon. All right. Now comes the shading part. Right. अब shading, remember यहाँ पे हम अपने लिए shading करेंगे. Examiner ने आपसे ऐसा कुछ नहीं कहा. Oh, table में yes, x should be on the top. I mean, you know, because x is the independent variable. तो जो भी हमारा independent variable होता है उसको हम top पे रखते हैं. कौन सा step अब्दुल्ला, please narrow it down. And ये कौन है? Jets the first. Could you re-explain why the y part? I'll just explain the whole thing again. Okay, I don't know exactly क्या आप क्या पूछ रहे हो. So देखो, ये जो थर्ड वाली आपकी लाइन है ना, तो वो वाली लाइन में जहाँ पे आपका x और y दोनों हैं, उसको बनाने के लिए, उसको ड्रॉ करने के लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा. ठीक है, इसमें आप इस जैसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन में you just need to know the point at which the line is cutting the x and y axis. ठीक है, in this case you need to first plug in some x values so that you know what your y values are, and as far as the values of x that you're going to plug in are concerned, that have to be relevant to the plane, I mean the x and y values that are available on the graph. Okay, for example यहाँ पे मैं -1 -2 plug in करके कुछ नहीं कर सकता because उनको मार्क करने की जगह ही नहीं है, तो इसलिए मैंने 0 1 2 लिया, x की जगह plug in करा, 3 minus 0 is 3, 3 minus 1 is 2, and 3 minus 2 is 1. Okay, now that I have the x and y values. ठीक है, ये आपके coordinates हैं by the way. I think शायद आपको इसमें confusion हो रही है. ये 0 3 x and y coordinate मिला के एक point हो गया, 1 2 x and y coordinate मिला के एक point हो गया, 2 1 x y coordinate मिला के एक और point हो गया. ठीक है. Is this lecture useful for JEE mains? What's that? I don't know. Okay, now अब जो है, अब हमने करनी है क्या, अब हमने करनी है shading. Alright. अब shading कैसे करेंगे ज़रा देखें. शेडिंग के लिए ना प्लीज़ यूज़ अ लाइट पेंसिल. ओके, ये नहीं कि आप इतनी ज़्यादा शेडिंग कर दें कि लाइनें ही छुप जाएं और आपके लिए फिर उसको अगर आपने गलत कर दी तो मिटाना भी मुश्किल हो जाए. मैथ्स के वेक्टर्स के लिए यू डोंट रियली हैव टू यूज़ माय एड मैथ वीडियोस. आई हैव सेपरेट वीडियोस फॉर मैथ वेक्टर्स, यू कैन यूज़ दैट. ओके, ऑलराइट. नाउ अब here comes the shading part, so please all of you pay close attention because this is the part that most of you guys find tricky. ठीक है, ऑलराइट. नाउ starting with this, x is greater than or equal to 1. इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे x is greater than or equal to 1 lesser than or equal to 5. इसका मतलब ये कि 1 से बड़ा और 5 से छोटा. ठीक है. Yes Hussein, like I said at the very beginning कि कोई भी लाइन ज्वाइन करने के लिए 2 points are enough. 3 points हम लेते हैं for further accuracy. For example, अगर हमने एक सही लिया और एक गलत दिया तो फिर आपकी लाइन गड़बड़ बन जाएगी ना. 3 सही होता है, कंफर्म हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 3 पॉइंट्स लिए उसमें से 2 सही हैं, 1 गलत हैं, सो दैट विल इंस्टेंटली प्रॉम्प्ट यू एंड यू विल प्रॉब्ली एंड अप रियलाइजिंग कि इसमें से कोई एक पॉइंट गड़बड़ है बिकॉज दे आर नॉट लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन. 2 पॉइंट्स तो आप कोई सी भी ले लें, दे विल ऑलवेज लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. ओके, सो एज आई वाज सेइंग,
x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेसर देन और इक्वल टू 5, दैट मीन्स के 1 के उससे बड़ा होगा सो इसका ग्रेटर वाला रीजन क्या होगा, राइट साइड पे होगा, और इससे लेसर होगा सो इसका लेसर वाला रीजन जो होगा वो इसके लेफ्ट साइड पे होगा. सर ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन नहीं, शेडिंग में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ लाइन में फ़र्क है. सो दैट मीन्स मैं इसके राइट हैंड साइड पे शेड करूँगा और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे शेड करूँगा. ठीक है, ज़्यादा शेडिंग नहीं करना, नहीं तो यू विल जस्ट बी लॉस्ट इन योर ओन शेडिंग. ओके, देन इट सेज y is greater than or equal to 0, lesser than or equal to 4. That means इस लाइन से ऊपर और इस लाइन से नीचे. So greater than or equal to 0 से ऊपर यहाँ पे आ गया और y equals to 4 से नीचे तो यहाँ पे आ गया. ठीक है, फिर it says y is greater than or equal to 3 minus x. So here's the line that we're talking about. Okay, greater का मतलब कि इसके ऊपर शेड करना है. अच्छा, शेड करने से पहले प्लीज मेक श्योर ऑफ वन थिंग, एंड दैट इज कि आपका y जो है ना, डजेंट मैटर वेदर इट्स अ सब्जेक्ट और नॉट, बट इट हैज़ टू बी पॉजिटिव. ठीक है, सो यहाँ पे y सब्जेक्ट भी है, पॉजिटिव भी है, सो दैट मीन्स वी आर गुड टू गो. अच्छा, अब अगर हम रीजन देखें जहाँ पे हमारी सारे शेडिंग आ रही है, वो ये रीजन बन रहा है. व्हाट शेप इज दिस, 1 2 3 4 5, इट्स अ पेंटागन. ठीक है, बट खैर दैट डजंट मैटर व्हाट शेप दिस इज, बट यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने अपना और लिख लेना है, एंड दैट्स इट, वी आर गुड टू गो. ठीक है, ओके, सो दिस वाज अक्टूबर नवंबर 2021 पेपर 1 वेरिएंट 1. ठीक है, अब ये आपका समझो सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस है. रिमेंबर देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस एट मैक्स. एक वो जिसमें आपने लाइन बना के शेड करना होता है, एक वो जिसमें आपके पास लाइंस बनी हुई होती हैं और आपने और शेड भी वो होता है, आपने डिफाइन करना होता है. एंड द थर्ड कैटेगरी इज कि जहाँ पे आपके पास लाइंस बनी हुई होती हैं और आपको इनइक्वालिटीज दी हुई होती हैं और आपने खुद शेड करना होता है. ठीक है, सो दिस इज द सेकंड कैटेगरी. यहाँ पे हमने क्या करना था, यहाँ पे हमने वी हैड टू ड्रॉ लाइंस एंड शेड. दिस इज समझो द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन. Any O-level kinematics? Yes, I do have O-level kinematics past paper videos on my channel. You will find them. ठीक है, अभी मैंने recently भी एक बनाई है by the way. अच्छा, ये जो है आपका दिस क्वेश्चन बाय द वे, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने डिफाइन करना है. यू हैव टू डिफाइन द शेडेड रीजन. ओके, नाउ अब इसके लिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आप अपनी लाइंस को ना नंबर कर दें. एग्जाम में आप कलर पेंसिल्स यूज़ नहीं कर सकते वरना वो बेहतरीन होता, लेकिन इसमें मैं प्रेफर करता हूँ कि आप अपनी लाइंस को नंबर कर दें. ठीक है, अब द रीज़न वाई आई एम यूजिंग अ डिफरेंट कलर इज़ बिकॉज ब्लैक के ऊपर अगर ब्लैक से बनाऊंगा तो फिर आप लोगों को विजिबल नहीं होगा. ठीक है, या एक फैक्ट एक काम करते हैं जस्ट सो दैट इट्स क्लियर टू यू गाइस, यहाँ पे हम डिफरेंट कलर्स यूज कर ही लेते हैं. ठीक है, ओके, नाउ हियर yes I will send you a link to these topicals, don't worry about that. ठीक है, अब यहाँ पे the question has been kind enough to already tell you कि ये जो इक्वेशन है ये किस लाइन की है, ये है y equals to minus half x plus 5 की. ठीक है, सवाल ने आपको बता दिया तो सवाल ने आप पे टेक्निकली एक फेवर कर दिया. ठीक है, अगर सवाल आपको नहीं भी बताता कि ये किस लाइन की इक्वेशन है तो हम खुद इसको डिटर्मिन कर लेते हैं. ठीक है, इसका मतलब कि एक नेगेटिव ग्रेडियंट है, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन होगी और y इंटरसेप्ट 5 है. सो यहाँ पे एक ही लाइन है, इसका नेगेटिव ग्रेडियंट है और y इंटरसेप्ट 5 है. ठीक है, then it says write down the 3 inequalities that define the shaded region. अब इसमें जो आपकी बाकी 2 लाइंस है ना, रेड वाली और ग्रीन वाली, रेड और ग्रीन लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है. तो इफ आई आस्क यू गाइस व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द रेड लाइन, कैन यू गाइस टेल मी? अच्छा, फर्स्ट टेल मी द इक्वेशन. ठीक है, इनइक्वालिटी बाद में देखेंगे, पहले मुझे इक्वेशन बताओ. चलो, आप लोगों ने मुझे डायरेक्ट आंसर भी बता दिया, दैट्स ग्रेट, बट remember to follow the step by step process, and that is first determine the equation, ठीक है, and then write down the inequality. Okay, so for the line in red इसकी जो equation होगी वो होगी y equals to 2, that's great, and for the line in green उसकी जो equation होगी, green वाली line की क्या equation होगी, चलो मुझे ये बताओ. x equals to minus 4, perfect, x equals to minus 4. ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने फाइनली रीजन देखना है. अब लेट्स स्टार्ट विद द रेड लाइन फर्स्ट. सो रेड लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 2. ठीक है, ये आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज
The only way to do it, I'm just saying that if you do it like this, so your chances of getting it wrong will be significantly less. So red y line की equation क्या है? Equation है y is equals to 2. The region that we want is above the line. That means कि ये greater होगा, and at the same time, since the line is solid, so it's not just going to be greater. In fact, it's going to be greater than or equal to. So now we're looking at y is greater than or equal to 2. What do you want me to repeat? Okay, then let's talk about the line in blue. Line in blue, we already know what the equation is, okay? And the region that we want is below the line, which means it's going to be lesser than, and the fact that the line is a solid line, which means it's going to be lesser than or equal to. So y is lesser than or equal to minus half x plus 5. Okay, now finally let's talk about the line in green. The region that we want is on the right hand side. The line is a solid line, so that means it's going to be greater than or equal to. So x is greater than or equal to minus 4, and that's it. That's your answer. अगर for example question में equation नहीं भी given होती, so we could have very easily worked out the equation कैसे? By just using the points on this straight line. ठीक है, इस तरह का भी question आएगा, don't worry about it. Okay, there you go. So this is a question from May June 2021, paper 1, variant 1. Sir, I'm still having trouble for that one question you made a table for. Can you narrow it down कि आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, so I know exactly कि क्या समझाना है आपको. Do we have to write down these steps? I would suggest, like I said, कि do it as जितना आप elaborate manner में करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है. ठीक है. Okay. Now let's talk about this question. Here the question says the line 2y equals to x is drawn on the grid. On the grid, draw the line x y is equals to 2. अच्छा, y equals to 2 की line बनाने के लिए as always आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. This is going to be a horizontal line and it's going to cut the y axis at 2, and that's it. ये आपकी line बन गई. Okay. y plus x equals to 4 however बनाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है. इसको हम बनाते हैं green से. ठीक है. अच्छा, this is a question that's very similar to the one that you're asking, so hopefully आपका जो doubt है वो इसमें clear हो जाएगा. ठीक है. So in this you have x and y both, which means whenever you have to draw a line that contains x and y both, you need to make a table. And before you can make a table, make sure कि आप y को subject बना लें. So y is equals to minus x plus 4. Now we're going to make a table. ठीक है, table बना लिया हमने. Table में हम 3 values plug in करेंगे. वो 3 वैल्यूज़ यहाँ पे कौन सी हो सकती हैं? नेगेटिव भी हो सकती हैं, ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. So here's x, here's y. Let's plug in 0. 0 plug in करेंगे तो 4 आएगा. In fact, let's plug in minus 1 first. So minus 1 is 1, 1 plus 4 is 5. Let's plug in 0. 0 plug in करेंगे तो 4 आएगा. ठीक है. और अगर हम plug in करते हैं 1, so minus 1 plus 4 is 3. Okay, so remember these points. Minus 1 पे 5, minus 1 पे 5 is right over here, 0 पे 4 and 1 पे 3. Let's just double check before we make a straight line. So there you go. प्लीज़ रिमेंबर कि आपने लाइन जो है ये नहीं कि बस आप इतनी सी लाइन बना दें और छोड़ दें, आपने लाइन को जो है वो एक्सटेंड भी करना है. ठीक है. How do you decide how to plot these points? देखो, points हम कोई से भी ले सकते हैं. ठीक है. Doesn't matter what points you take, you will get the same straight line. So let's say if you take 1 2 3 and your friend takes minus 1 minus 2 minus 3, so both of you will get the same straight line after you've extended it. ठीक है. So don't worry about that. There is no right or wrong answer to that. बस शर्त ये है कि points आप ऐसे लो जो आपके ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं वहाँ पे. ठीक है. यहाँ पे मैंने नेगेटिव 0 और पॉजिटिव इसलिए प्रेफर किया क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव भी प्लॉट करने की जगह है. ठीक है. अच्छा, अब ये लाइन भी बन गई, सारी लाइंस हमारे पास बन गई हैं. नाउ कम्स द शेडिंग पार्ट. हाउ डू वी चेक के द वैल्यू फॉर वन स्मॉल बॉक्स? ओके, आई विल टेल यू हाउ टू डू दैट. सो बेसिकली ये 1 है, सही है. दिस इज फॉर ग्राफ्स, यूजफुल फॉर ग्राफ्स ऑफ फंक्शन, नॉट वेरी यूजफुल फॉर दिस, बट खैर गुड टू नो एनीवे. सो अब आप देखें 1 कितने बॉक्सेस में स्प्लिट हुआ है? Small boxes. One split हुआ है in a total of 1 2 3 4 5 small boxes. So you do 1 divided by 5, which means 0.2. So that means every little box that you see over here
is basically worth 0.2 units and the same is for y also. और ज़रूरी नहीं था कि आप ये 1 करके फिर ही करें, आप ये 2 के साथ भी कर सकते थे. आप ये देखें कि 2 कितने बॉक्सेस में यहाँ पे स्प्लिट हुआ हुआ है. सो 2 यहाँ पे 10 बॉक्सेस में स्प्लिट हुआ हुआ है. ओके, सो यू कैन डू 2/10 and you'll get 0.2 again. Okay, so I hope that answers your question, although that's kind of irrelevant right now, but I hope that answers your question. Walaikum Assalam, Fahad. Okay, now that we have drawn all the lines, यहाँ पे सवाल आपसे कह रहे हैं shade and label the region or. अब देखो IGCSE में अक्सर the examiner asks you to shade the unwanted region. Okay, in this, so we should take 3 points. Yes, 3 points to be on the safe side, although 2 points theoretically, technically काफ़ी होते हैं to make a straight line, but 3 points हम लेते हैं just to be on the safe side. Okay. Okay, so मैं ये कहता है कि IGCSE में अक्सर सवाल कहता है कि shade the unwanted region. Okay, but that's entirely in that case where when if the question has asked you कि आपने क्या shade करना है, तो of course आपने वही shade करना है. But अगर सवाल ने आपको कुछ कहा हुआ नहीं है, freedom दिया हुआ है, तो फिर it's up to you whatever you want to shade. Okay, x plus y is lesser than or equal to 4. अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक नोट लिख रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टेंड टू फॉरगेट दिस. वो ये कि बिफोर शेडिंग मेक श्योर y इज पॉजिटिव. ठीक है, y पॉजिटिव है यहाँ पे, so that means we're good to go, but still it's important for you guys to remember that and be conscious about this also. ठीक है, so x plus y is lesser than or equal to 4. तो ये वो लाइन है जो कि पहले से बनी हुई थी. This is the line that was drawn in black. Lesser than or equal to का मतलब कि मैं कहाँ शेड करूँगा, ये रही वो लाइन के ऊपर शेड करूँगा या लाइन के नीचे शेड करूँगा. Question for you guys. Am I going to shade above the line? Am I going to shade below the line? जल्दी से बताओ. If y is negative, then you make it positive and then you look at the inequality. ठीक है, नीचे. Yes, that's correct. Okay, so let's shade this nicely. ठीक है, alright. फिर आपका 2y is greater than or equal to x. So although y is not the subject over here, but it's positive, that means it's good to go. Oh wait a minute. ये वो वाली लाइन नहीं थी. My bad. ये वाली लाइन नहीं थी. I just realized. ये तो आपकी sorry about that. Okay, ये तो वो लाइन है जो हमने ग्रीन से खुद बनाई है. Sorry. Okay, so इस लाइन के कहाँ पे शेड करूँगा मैं? इस लाइन के भी नीचे ही शेड करूँगा. चलो, ओके, वी विल डू अ क्वेश्चन जहाँ पे ये y पॉजिटिव वाली चीज़ हम कर लेंगे. ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट. अच्छा, अब आते हैं 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x. हाँ, ये वो लाइन है जो कि क्वेश्चन में पहले से बनी हुई थी. ठीक है, ग्रेटर का मतलब कि मैं इस लाइन के कहाँ शेड करूँगा? इस लाइन के ऊपर शेड करूँगा. और प्लीज़ शेड पेंसिल से करना, ताकि जस्ट लाइक व्हाट वी डिड राइट नाउ, गलत लाइन हमने शेड कर दी तो यू कैन ऑलवेज इरेज दैट एंड फिक्स इट. ठीक है, वाई शेड बिलो? वेल, वी शेडिंग बिलो बिकॉज ऑफ द 4 केसेस. रिमेंबर, पता है अगर आपको कभी ये डर हो ना कि आप एग्जाम में भूल जाओगे ये चीज़, तो जस्ट राइट दैट डाउन. जस्ट जैसे ही आपको पेपर मिले ना, जस्ट मेक दोस 4 केसेस एंड लेबल इट ग्रेटर लेसर ग्रेटर लेसर लेसर. ठीक है, y is lesser than or equal to 2, so that's the blue line that we're talking about. So that means हम कहाँ पे शेड करेंगे? हम यहाँ पे शेड करेंगे. ठीक है ना. अच्छा, फिर x is greater than or equal to 0. What do you think about that? How do you know that line is 2y equals to x? It's given in the question. That's how I know that line is 2y equals to x. हाँ, so मुझे बताओ x is equal to 0. ये x is greater than 0 ना, but first I want you guys to tell me x equals to 0 कौन सी line होगी? What line is the line x equals to 0? What do you think? What do you think? Since black line has positive gradient, that's why we shade above it. Yes, Hajra. Since that line has positive gradient, I hope I'm pronouncing your name correctly. That is why we shade above the line. Okay. Okay, so this is the y-axis. Greater का मतलब, greater you know, let's double check. हाँ, greater का मतलब कि we're gonna shade on the right side of it. ठीक है.
अब प्लीज़ बिफोर यू ड्रॉ द कंक्लूजन के रीजन और कौन सा है, आप सारे रीजन्स को ना ज़रा गौर से स्टडी करें, ठीक है। अब ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये वाला रीजन इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज ये यस वाई एक्सिस के राइट साइड पे है, यस आपका ग्रीन लाइन के नीचे है, यस टेक्निकली ब्लैक वाली लाइन के ऊपर भी है, लेकिन ब्लू वाली लाइन के ऊपर नहीं है। ये आपका एज फार एज द ब्लू लाइन इज कंसर्न, उसमें जो हमारा वांटेड रीजन है वो उसके नीचे है, ठीक है। फिर हम उसके नीचे आते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट दिस रीजन। ये वाला जो आपका रीजन है, यस यहाँ पे ये ब्लू वाली लाइन से भी लेसर है, ग्रीन वाली लाइन से भी लेसर है, ब्लैक वाली लाइन से भी ग्रेटर है, वाई एक्सिस से भी ग्रेटर है। सो दैट मीन्स जो हमारा रीजन आर होगा वो ये होगा। प्लीज़ रिमेंबर के एंड में आपने इसको लेबल करना है, डू नॉट टेक दिस लाइटली। आपका एग्जामिनर जो है वो खुद आपके लिए लेबल नहीं करेगा, ठीक है। एंड द एग्जामिनर इज नॉट गोना गिव यू एनी ग्रेस मार्क्स और एनीथिंग, सो just have to earn every single mark, okay? All right, let me just put my laptop on charge. Go get a charger. Okay. अच्छा, अब देखो ये वो सवाल है अक्टूबर नवंबर 2020 का, ठीक है। ये सवाल और करते हैं और फिर देखते हैं, लेट्स सी इफ यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे इफ यू गाइस रिमेंबर, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, वो ये कि सर जस्ट गिविंग आवर इनफ टू मेक इट क्लियर, सिंस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन द क्वेश्चन आस्क्ड अस टू शेड एंड लेबल, तो फिर आपको लेबल करना होगा, ठीक है। या सो इफ यू गाइस रिमेंबर, मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताई थी कि समटाइम्स आपके पास जो लाइन होगी वो डॉटेड होगी, तो इन दैट केस तो क्लियर है कि लेसर होगा या ग्रेटर होगा, ठीक है। बट इन सम केसेस यू विल हैव अ लाइन व्हिच इज सॉलिड, बट आपको लिखा हुआ होगा इनसाइड द रीजन, ठीक है। सॉलिड लाइन होगी विद इनसाइड द रीजन, तो इन दैट केस भी आपने क्या करना है, इन दैट केस भी आपने ग्रेटर या लेसर वाला साइन यूज करना है। इनफैक्ट मैं काम करता हूँ, मैं इसको ना एक थर्ड केस बना देता हूँ, इससे ज़रा क्लियरली जाहिर नहीं हो रहा, ओके। So sometimes you will have a solid line, ठीक है, but the question will say कि inside the region, तो in that case भी याद रहे कि आपने क्या करना है, in that case भी आपने कौन सा साइन यूज करना है, ग्रेटर वाला या लेसर वाला, ठीक है। What about unshaded? We have to write or there as well. रीड द क्वेश्चन अलीजा, इट्स क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपने उसको लेबल करना है या नहीं करना, ठीक है। सो डोंट जस्ट यू नो एंड अप मेमोराइजिंग ऑल दिस, समटाइम्स आपके जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ना, आपको सवाल पढ़ के इसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। सर आपका ऑनलाइन बैच कब से बनेगा, मतलब न्यू सेशन का बैच? जुलाई से आई प्रॉब्ली अनाउंस ऑन माई इंस्टाग्राम, यू कैन स्टार्ट रजिस्टरिंग देन, फिर अगस्त से विल स्टार्ट, ओके। अब देखो, दिस इज वन ऑफ दोज केसेस एंड दिस इज अ फेयरली रीसेंट क्वेश्चन, इट्स फ्रॉम अक्टूबर नवंबर 2020, ओके, पेपर 1 वेरिएंट 2। सो दिस सेज हियर द रीजन इनसाइड ट्रायंगल एबीसी इज इनसाइड, देखो उसने इनसाइड बोल्ड लेटर्स में भी लिखा है आपके लिए, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, एंड डोंट टेक दिस लाइटली। और अगर आपको चलो कंफ्यूज हो भी गए तो फिर वो आपको फर्दर कंफ्यूजन क्लैरिफाई कर देगा बाय टेलिंग यू कि वन ऑफ दीज लाइंस इज 2x + 3y इज लेस देन 32। अच्छा, अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, पहले तो मैं इन लाइंस को ना ज़रा लेबल कलर कर देता हूँ। ये ब्लू वाली लाइन है, ठीक है, ये रेड वाली लाइन है और ये ग्रीन वाली लाइन है, ठीक है। नाउ आई वांट यू गाइस टू टेक योर टाइम एंड टेल मी, वैसे तो मुझे कलर करने की ज़रूरत नहीं थी सिंस हम उसको ए सी सी बी और ए बी से रेफर कर सकते थे, बट चलो आसान हो गया। आई वांट यू गाइस टू टेल मी कि ये जो लाइन है 2x + 3y इज लेस देन 32, ये आपके ख्याल में कौन सी लाइन है? इज इट द रेड वन, इज इट द ग्रीन वन और इज इट द ब्लू वन? ठीक है, पुट सम थॉट इनटू इट एंड देन आंसर, बिकॉज आई एम गोना आस्क यू कि आपने कैसे डिटरमिन किया। ओके, सो गो अहेड। ग्रीन, रेड, ओके, चलो एक काम करते हैं, लेट्स यूज दिस पोल फीचर। ओके, व्हाट लाइन इज द लाइन 2x + 3y = 32? ठीक है, इसको ग्रीन एंड रेड।
Okay. Can you guys see the poll that I just made? Okay. Okay, it's the first time I've used this feature during a live stream. It's interesting. Should probably use it more often. ठीक है, चलो बस 1 मिनट और वेट करते हैं. लेट्स सी व्हाट यू गाइस थिंक एंड देन विल डिस्कस. Oh, I just realized that it says that in the question. चलो एक काम करते हैं, before you guys look at that, इसको मैं चलो अब किसी ने नहीं देखा. Yeah, I just realized it says that in the question. Should have read the question. मेरा कैमरा क्यों बंद हो गया? Yeah, I know the question told us that. मैंने बाद में देखा. I'm sorry about that. Okay, चलें इसको एंड करते हैं. चलें, मैंने तो सवाल नहीं पढ़ा, आप लोगों को तो सवाल पढ़ना चाहिए था, फिर भी आप लोग रेट कर रहे हैं. अच्छा, अब ज़रा ना इसको सेटल कर लेते हैं. ठीक है, लेट्स से सवाल ने हमें नहीं बताया हुआ होता. ठीक है, इधर तो चलो क्वेश्चन ने बताया ना. ठीक है, लेट्स से सवाल ने हमें नहीं बताया हुआ होता. ओके, तो इन दैट केस हम क्या करते हैं? इन दैट केस हम ये करते हैं कि हम फटाफट ना जरा y को सब्जेक्ट बना लेते हैं, और वो मतलब पूरा y को सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, बस ऐसे ही रफली हम y को सब्जेक्ट बना लेते हैं. वी कैन डू दिस मेंटली आल्सो. सो पहले जरा हम इसको इक्वेशन में टर्न करते हैं. सो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 32, 3y इज इक्वल्स टू minus 2x plus 32. अब आपको, like I said, you don't really have to make y the subject, you don't have to be like totally formal about it, but you can see कि gradient जो है, even after we make y the subject, gradient जो होगा वो negative होगा. ठीक है. अच्छा, मैं इसको ना ज़रा किसी न्यूट्रल कलर पे ले आता हूँ ताकि आप लोग इसको रेड से ये मत समझें कि रेड है. ठीक है. अब मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कितनी लाइनें हैं जिसका ग्रेडियंट नेगेटिव है? ठीक है, रेड वाली लाइन को तो ग्रेडियंट नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है. क्यों? क्योंकि वो राइज कर रही है. ग्रीन वाली लाइन जो है वो लाइन है जिसका ग्रेडियंट नेगेटिव है. क्यों? क्योंकि वो फॉल कर रही है. सो दैट मीन्स के ये जो आप ग्रीन वाली लाइन देख रहे हैं, ये है बेसिकली जिसकी इक्वेशन क्या है? 3y प्लस 2x इज इक्वल्स टू 32. ठीक है, 2y प्लस 3x इक्वल्स टू 32. ओके, ग्रेट. ठीक है, बट in this particular question सवाल में दिया हुआ था, so nothing to worry about, but this is the way that you do it. Okay, अच्छा, चलो. Now that this is out of the way, then it says write down the other two inequalities. अच्छा, अब इसमें ब्लू वाली लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. तो क्या आप मुझे ब्लू वाली लाइन की इक्वेशन, ठीक है, मैं अभी इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, इनइक्वालिटी हम बाद में निकालेंगे. ठीक है, पहले इक्वेशन निकालेंगे. क्या आप मुझे ब्लू वाली लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं क्या होगी? ब्लू वाली लाइन की इक्वेशन होगी, सही जवाब दिया आप लोगों ने, y is equals to 2. ठीक है, so the equation of the blue line is going to be y equals to 2. perfect. अच्छा, अब as far as the red line is concerned, red line की इक्वेशन, इनइक्वालिटी बाद में देखेंगे. ठीक है, पहले जरा सारी इक्वेशंस निकाल के एक जगह कर लो. ठीक है, as far as the red line is concerned, रेड लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. ए के कोऑर्डिनेट्स लिखो. ए के कोऑर्डिनेट्स है 1,2, और दूसरा कौन सा पॉइंट है जहाँ से रेड लाइन गुजर रही है? वो है सी, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4,8. ठीक है, अच्छा, इसको एंड कर देते हैं. सही है. अच्छा, अब इसका ग्रेडियंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वी विल डू 8 माइनस 2 ओवर 4 माइनस 1. 8 माइनस 2 is 6, 4 माइनस 1 is 3. ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो गई? 6/3 is 2. ठीक है. अच्छा,
इसका मतलब कि हम कहाँ पहुंच गए, हम पहुंच गए y is equals to 2x plus c. ओके, c निकालने के लिए sometimes we look at a line and see if we can tell exactly where the line is cutting the y-axis. In this case we can't do that, so in this case हमें कोई एक पॉइंट लेके प्लग इन करना पड़ेगा. ठीक है, so I'm gonna go with a. y की जगह रखते हैं 2, x की जगह रखते हैं 1 plus c. So 2 is equals to 2 plus c. c इत्तेफाक से 0 आ गया, so that means लाइन की इक्वेशन जो है वो क्या हो गई, वो सीधी सीधी हो गई, y is equals to 2x and that's it. ठीक है, okay, now that we have all the equations, अब जरा हम बात करते हैं किसकी, अब जरा हम बात करते हैं inequality की. So ब्लू वाली लाइन जिसकी इक्वेशन थी y is equals to 2, अब जो रीजन हमें चाहिए वो लाइन के ऊपर है, एंड एट द सेम टाइम वी नीड टू राइट डाउन द रीजन दैट इज इनसाइड द ट्रायंगल. तो इन दैट केस हम कौन सा साइन यूज करेंगे? नहीं, प्लीज डू नॉट यूज दिस एड मैथ वाला मेथड इन मैथ, अवॉइड दैट, जस्ट स्टिक टू y इक्वल्स टू mx प्लस c. ठीक है, मैंने किसी भी मैथ की बुक में, भले वो IGCSE की हो भले वो उसकी हो, मैंने ये वाला फॉर्मेट नहीं देखा. ठीक है, तो प्लीज अवॉइड दैट. Greater, yes, so y is greater than 2. ये आपकी एक inequality आ गई. The third inequality is going to be for the red line, और इस red वाली line की equation है y is equals to 2x. The region that we want is below the line. तो मुझे बताओ कि कौन सा साइन यूज करेंगे हम, greater या lesser? आंसर तो ऑफकोर्स सही आएगा. आंसर मैं कब कह रहा हूँ कि आंसर गलत आएगा, आंसर तो सही आएगा, बट यू कांट यूज एड मैथ स्टफ फॉर इन मैथ. ठीक है, अवॉइड दैट. y is less than 2x, yes, आंसर तो ऑफकोर्स सही आएगा. ठीक है, दैट इट्स अ लेजिट मेथड, बट एड मैथ वाले मेथड्स प्लीज मैथ में ना यूज करें. ओके, नाउ पार्ट बी. अब पार्ट बी जरा एक इंटरेस्टिंग सवाल है, ध्यान दीजिएगा उसके लिए. सो पार्ट बी आपसे कह रहा है द पॉइंट k, 7 where k is an integer. ठीक है, तो सवाल में आपके दो बहुत इंपॉर्टेंट की वर्ड्स हैं. k इंटीजर है एंड लाइज इनसाइड द ट्रायंगल ABC. ठीक है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू, सो दैट मींस देयर कुड बी मोर देन वन वैल्यू. ठीक है, अब वो पॉसिबल वैल्यू कैसे निकलेगी, पहले तो ये देख लेते हैं कि k, 7 का मतलब क्या है. k, 7 का मतलब ये है कि ये लाई करेगा किस लाइन पे, ये लाई करेगा एक ऐसी लाइन पे जिसका y कोऑर्डिनेट क्या है, जिसका y कोऑर्डिनेट 7 है. ठीक है, अच्छा, अब अगर हम ये वाली लाइन की बात करें, इस वाली लाइन की जो इक्वेशन होगी वो क्या है, वो होगी y इक्वल्स टू 8. ठीक है, y इक्वल्स टू 7 का मतलब क्या, y इक्वल्स टू 7 का मतलब कि थोड़ा सा हम इससे नीचे आ जाएं. ओके, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी फिक्स इट. अब सही है. ओके, आई गेस सो. या, सो एज आई वाज सेइंग, ठीक है, आई विल डू दिस फ्रॉम द बिगिनिंग. ठीक है, अब देखो, सो सवाल आपसे ये कह रहा है द पॉइंट k, 7 where k is an integer. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा पॉइंट है k, 7 जिसका आपको x कोऑर्डिनेट नहीं पता लेकिन y कोऑर्डिनेट फॉर श्योर पता है. ठीक है, यू नो फॉर श्योर दैट द y कोऑर्डिनेट इज 7. सो दैट मींस इफ यू नो द y कोऑर्डिनेट फॉर श्योर, वन थिंग इज फॉर श्योर एंड दैट इज कि वो ये वाली लाइन पे लाई करेगा. कौन सी लाइन पे, y इज इक्वल्स टू 7 पे. ठीक है, वो इस लाइन पे कहीं पे होगा. अब आपने ये बताना है कि उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है. ठीक है, क्या बताना है आपने उसका x कोऑर्डिनेट बताना है. अच्छा, अब एक पॉइंट तो हम फॉर श्योर बता सकते हैं, वो कौन सा बता सकते हैं, वो हम बता सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट 4 होगा. उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि जस्ट अबव दिस लाइन यू हैव x as 4.
So that means one value that we can say for sure that will be the value of k is 4. क्यों? क्योंकि देखो ये आपकी लाइन ट्राइंगल के अंदर से गुजर रही है और इसका y कोऑर्डिनेट 7 है, 7 फिक्स्ड है, ठीक है, और ट्राइंगल के अंदर ही x 4 आ रहा है, ठीक है। अब 4 से पहले कौन सा पॉइंट है, 4 के बाद कौन सा पॉइंट है, ये हमने देखना है, ठीक है। अच्छा, अब ये वैसे तो 2 मार्क का सवाल है, लेकिन इसकी जरा वर्किंग जो है ना थोड़ी सी ज्यादा होगी, ठीक है। अब वर्किंग ज्यादा कैसे होगी? अच्छा, और मैं एक और बात बताता हूँ। लेट्स से आपने ये 4 वाली चीज ना फिगर आउट नहीं की, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग आपने नहीं फिगर आउट किया कि 4 है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यू वांट टू प्ले इट एक्सट्रीमली सेफ, और आपने एक्सट्रीमली सेफ कैसे प्ले करना है मैं आपको बताता हूँ। एक्सट्रीमली सेफ प्ले करने का तरीका क्या है? एक्सट्रीमली सेफ प्ले करने का तरीका ये होगा कि आप ये करें कि आप ये दो x वैल्यूज डिटर्मिन कर लें, ठीक है। इसको मैं x1 कह देता हूँ और इसको मैं x2 कह देता हूँ। और अगर हम इन दो वैल्यूज को गौर से देखें तो देखो एक वो पॉइंट है जो रेड वाली लाइन पे आ रहा है और एक वो पॉइंट है जो ग्रीन वाली लाइन पे आ रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे रेड वाली लाइन पे डिटरमिन करना है कि जब y 7 है तो x किसके बराबर है, एंड जस्ट लाइक दैट आई नीड टू डिटरमिन ऑन द ग्रीन लाइन दैट व्हेन y is 7 व्हाट इज x इक्वल टू। ओके, आई विल रिपीट व्हाट आई जस्ट सेड। आई वांट टू फाइंड आउट the x coordinate when y is 7 on the red line, and just like that I'm going to find out the y coordinate, the x coordinate on the green line when y is 7, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए ये करेंगे, देखो पहले हम रेड वाली लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। रेड वाली लाइन और ये सारी वर्किंग आपने नीचे करनी है, मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ ताकि सामने सामने रहे और आपको पता चल जाए। So y is equals to 2x. Okay, I'll repeat. So here's what I said. I said कि I want to find out what is the x coordinate on the red line when y is equals to 7, okay, and I want to find out what is the x coordinate on the green line when y is equals to 7, okay, that's what I said. क्यों? उससे क्या होगा, मुझे दोनों एंड पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। जब मुझे दोनों एंड पॉइंट्स मिल जाएंगे तो मैं देखूंगा बीच में कौन कौन सी x वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। that's what the objective is. okay, now अब अगर इस लाइन पे y 7 के बराबर है, so 7 is equals to 2x. Let's write this nicely. 2x is equals to 7. That means x is equals to 7 upon 2, which means 3.5. Okay. So एक मुझे x की वैल्यू मिल गई क्या? एक मुझे x की वैल्यू मिल गई 3.5. So I'm going to replace this with 3.5 over here. ठीक है. Just like that, मैं ग्रीन वाली लाइन के साथ भी exactly यही चीज करूंगा. ग्रीन वाली लाइन की क्या इक्वेशन है? 3y plus 2x is equals to 32. 3y plus 2x is equals to 32. इस पे जब y is equals to 7 है तो मैं क्या करूंगा? 3 times 7 plus 2y is equals to 32. 21 plus 2y is equals to 32. 2y किसके बराबर हो जाएगा? 2y बराबर हो जाएगा आपका, सॉरी मुझे y की जगह प्लग इन करना था, मैंने x की जगह प्लग इन कर दिया, my bad. Let me just fix that quickly. मैंने इक्वेशन ही गलत लिख ली, जस्ट अ सेकंड. 2x plus 3y. ओके, सो y की जगह मैं रख रहा हूँ 7. 2x plus 3 times 7 is equals to 32. 2x is equals to 32 minus 21. 2x is equals to 32 minus 21 क्या हो जाएगा? आपका 11 हो जाएगा. x is equals to 11 upon 2, which is 5.5. ठीक है? Yes, made a mistake there. But now it's fixed. Okay. अब क्या कर रहे हैं? Remember, we're playing it extremely safe. अब आप मुझे ये बताएं, आप लोग, वो ये क्या? What are the? Now let's read the question again and let's understand कि इसको किस तरह से आंसर करना है. The question says the point k, 7 where k is an integer lies inside the triangle ABC. Find the possible values of k. अब मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जो कि ट्राइंगल के अंदर भी हो और इस ब्लैक वाली लाइन पे लाई कर रहा हो. How many possible values of x are we going to have? बताएं. या हम 3.5 नहीं लिख सकते बिकॉज 3.5 तो इंटीजर नहीं है ना. अभी तो हमने एंड पॉइंट्स निकाले हैं, ठीक है. अब हम देखेंगे कि कौन कौन से पॉसिबल आंसर्स हैं. नहीं, 3.5 is not a legit answer. 3.5 is not a legit answer. 5.5 is also not a legit answer. ठीक है. हमें रिमेंबर हमें क्या चाहिए? हमें इंटीजर वैल्यूज चाहिए. तो इंटीजर वैल्यूज क्या होंगी? इंटीजर वैल्यूज ये होंगी कि एक आपका x4 होगा, ठीक है, और एक आपका x5
5 होगा, ठीक है. सो वन पॉसिबल आंसर इज 4 एंड द अदर पॉसिबल आंसर इज 5, ठीक है. सो ये हैं आपके दो पोटेंशियल आंसर्स, ठीक है. पोटेंशियल आंसर्स नहीं, इनफैक्ट फाइनल आंसर्स. ओके, अब सवाल आपसे क्या, रिमेंबर व्हाट वाज के वाज योर एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है. सो मेक श्योर यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली और सवाल में आप वही चीज बताएं जो सवाल ने मांगी है, और मैं ये दोबारा बता देता हूँ. सो बेसिकली अगर एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं k,7, ठीक है. k,7 का मतलब कि उसका y कोऑर्डिनेट 7 है, व्हिच मींस इट हैज टू लाई ऑन दिस लाइन. ओके, सो हमने क्या किया, हमने y इक्वल्स टू 7 प्लग इन किया इस रेड वाली लाइन में, ताकि हमारे पास इस पॉइंट पे जो x कोऑर्डिनेट है वो आ जाए. फिर हमने क्या किया, फिर हमने y इक्वल्स टू 7 प्लग इन किया इस ग्रीन वाली लाइन पे, ताकि इस ग्रीन वाली लाइन पे क्या x कोऑर्डिनेट है हमें वो पता चल जाए, ठीक है. अब रेड ये 3.5 है, ये 5.5 है. दैट मींस ट्रायंगल के अंदर का जो रीजन है वो स्टार्ट हो रहा है 3.5 पे और एंड हो रहा है 5.5 पे. Okay, so what are the possible values of x where x is an integer such that it is inside the triangle also? So the answer to that is 4 and 5. Okay, so now you have your final answers. k क्या होगा, k आपका 4 होगा and k आपका 5 के बराबर होगा. So please make sure कि आप ये सारी वर्किंग जो मैंने ऊपर की है ना, ये सारी वर्किंग आप यहाँ पे करें, ठीक है. Now sadly it's just a 2-mark question. I know a lot of working for 2 marks, but you know that's how it is. Nothing we can do about that. Okay, now 3.5 कैसे पता चला? 3.5 ऐसे पता चला, ये देखो जो मैंने रेड से वर्किंग की है कि मैंने y इक्वल्स टू 2x में y की जगह 7 रखा, ठीक है, और मैंने ग्रीन वाली लाइन में y इक्वल्स टू 7 रखा. सो दोनों लाइन्स में मैंने y की जगह 7 रखा ताकि मुझे कॉरिस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट मिल जाए, ठीक है. How did you make the line without the numbers on the y coordinate? Was it a guess? नहीं, I never guessed anything. ये जो मैंने लाइन बनाई है, देखो ना 8 यहाँ पे है तो 7 तो बिल्कुल नीचे होगा. This is 8, right? None of what I've done over here is a guess. Okay? ये 8 है तो 7 इससे एक पॉइंट नीचे होगा. Thank you guys. Happy to help. I hope that answers your question. Pixo, that's how you pronounce it. Okay, now अब देखो inequalities के साथ साथ ना इस तरह के questions occasionally the examiner likes to throw in questions like these. Okay, all right. अच्छा चलो ये सवाल और करते हैं. अब देखो this is समझो the third category of the question. All right. So in this third category you have to find the equation and you have to define the shaded region also, ठीक है. बल्कि एक काम करता है, I think that one's fairly simple. Too easy. I think there's no point in solving questions from 2010. देखो 2010 वाले क्वेश्चंस जब भी करें आप लोग, जब आप लोग मतलब इतना पीछे जब भी जाओ जब when you feel like you've literally run out of questions to solve, ठीक है. अगर एक ऐसा पॉइंट आपके इसमें आ गया है प्रिपरेशन में where you've literally run out of past papers to solve and आप तकरीबन सभी कुछ प्रैक्टिस कर बैठे हो, तो फिर आप जाओ 2010 में. लेकिन don't start from there, ठीक है. Don't start from the difficult. जितना, although this is not always the case, but in some cases पीछे के जो questions हैं वो ज़रा थोड़े difficult हैं, ठीक है. एंड 2010 में you will find a few topics that are also not in your syllabus anymore. जैसे you will find transformation के 2 concepts हैं, share और stretch, no more in your syllabus. You'll find there's something else that's not in the syllabus anymore. choice होती थी पहले, 2018 से पहले आपके पास choice होती थी, section A section B होता था, no more in your syllabus, ठीक है. और एक और चीज़ भी रिमूव हुई थी मेरे यहाँ, पता नहीं, maybe I don't remember it correctly, मुझे याद नहीं आ रहा अभी. बट या आई वुडंट रिकमेंड दैट यू गो सो फार बैक. 2010 में तो मैंने अपना पेपर दिया था, दैट फील्स लाइक एजेस अगो. ओके, सो हियर्स क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट ए. ये एक अच्छा सवाल है. दिस इज डिफरेंट क्वेश्चन, नॉट वन ऑफ द क्वेश्चंस, आई मीन नॉट द यूजुअल क्वेश्चंस. नाइस लोगो, थैंक यू. Okay, so it says write down the label of the region which is defined by these 3 inequalities. Okay, so अब आपने क्या करना है, यू कैन सी कि आपके यहाँ पे आपके पास ABCDEFGHIJ से लेटर्स लिखे हुए हैं, ठीक है. एंड व्हाट यू हैव टू इज यू हैव टू
write down the label of the region which is defined by these three inequalities. Okay, so x plus y is less than 8. अब देखो ये वो सवाल है जिसमें ना आपको खुद ही डिटरमिन करना पड़ेगा, आपको इक्वेशन को मैच करना पड़ेगा कि कौन सी किस लाइन की इक्वेशन है. ठीक है, सो टू मेक इट इंटरेस्टिंग मैं ज़रा इक्वेशंस को कलर कर रहा हूँ एंड आई वांट यू गाइस टू टेल मी कि कौन सी इक्वेशन किसकी है. ठीक है, सो ये ग्रीन आ गई, ये ब्लू आ गई, सही है, और ये आपका रेड आ गई, एंड चलो ब्लैक को ब्लैक ही रहने देते हैं. ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ x प्लस वाई इक्वल्स टू 8. x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 ग्रीन वाली लाइन की इक्वेशन है, रेड वाली की है, ब्लू वाली की है, या ब्लैक वाली की है? ये दिखने में मुश्किल सवाल है. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, इट्स नॉट एज डिफिकल्ट. प्लीज कोई भी सवाल देखते ही ना डोंट ड्रॉ कंक्लूजन कि ये मुश्किल सवाल है. ठीक है, first become good friends with it and you'll find it easy. Get familiar with the question, you'll find it easy. Yeah, see Mariam, thank you. It looks horrible but it's actually very easy. Okay, so you guys are saying green. Can I also know why you guys are saying green? Green is the correct answer, by the way, but I'd like to know why you guys think that is. Y-intercept is 8, very good. Or if you could just quickly make y the subject in your head, you'll realize y equals to minus x plus 8. So that means we're talking about a line that has negative gradient, okay? And negative gradient की यहाँ पे एक ही line है, and that's the green one. ठीक है, perfect. अच्छा, y equals to half x के बारे में बताओ जल्दी से. ये कौन सी line की equation है? इसको ज़रा मैं color code कर दूँ. इसको मैंने green कर दिया. जल्दी से बताओ मुझे y इक्वल्स टू हाफ एक्स के कौन सी लाइन की इक्वेशन है? ग्रीन तो चलो हो गई, रेड ब्लू ब्लैक, व्हाट डू यू थिंक? It's the one in blue, that's correct, it's the one in blue. Perfect. Why? Because it has positive gradient and 0 as your y-intercept. There's only one line that has positive gradient and 0 as your y-intercept. Okay. X equals to 0 मुझे बताओ कौन से एक्सिस की इक्वेशन है? y axis, x axis. Yeah, you guys are right. It's the blue one. It's the y-axis और y-axis का मतलब रेड से है. ठीक है, and y equals to 0 has to be the x-axis, so that means that's the one in black. ठीक है, तो प्लीज़ ये ड्रिल कर लिया करो शेडिंग करने से पहले, या कुछ भी अगर आपको बताया हुआ नहीं है एक्सप्लिसिटली कि कौन सी इक्वेशन किस लाइन की है, तो जस्ट डू दिस सिंपल ड्रिल, इट विल मेक योर लाइफ इजी. ठीक है, अच्छा फिर हम बात करते हैं किसकी? फिर हम बात करते हैं ज़रा शेड करके हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं. x प्लस वाई इज लेस देन 8 का मतलब इस लाइन के नीचे होगा. इसको ज़रा थोड़ा लाइट कलर कर लेते हैं. ठीक है, y इज ग्रेटर देन हाफ x का मतलब इस लाइन के ऊपर होगा. y इज ग्रेटर देन 0 का मतलब y इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है आपका ब्लैक वाली लाइन के ऊपर होगा. ठीक है, अच्छा अब आप मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा रीजन है जो कि इसको डिफाइन कर रहा है. माई स्क्रीन इज ब्लरी, इज इट? x plus y is less than 8. Y, just wait a minute, it's y is less than half x. Sorry, I just realized it's y is less than half x. Sorry about that. Let me just fix that real quick. X plus y is less than 8. Y is lesser than half x, so इसके नीचे होगा. ठीक है, and y is greater than 0, that means it's above the x axis. ठीक है, so अब मुझे ये बताओ कि कौन सा रीजन आ रहा है. यस, ब्लू के नीचे होगा. थैंक यू. y is greater than 0, so x axis के ऊपर. तो मुझे बताओ what letter are we talking about? Are we talking about letter? Yes, we're talking about letter G. ठीक है, letter G is the letter which is satisfying all these inequalities, so G is going to be our final answer. ठीक है, अच्छा फिर बात आ रही है B की. B कह रहा है write down all the inequalities which define region E. अब देखो पहले ज़रा इस शेडिंग को क्लियर कर देते हैं.
ओके, सो रीजन ई को देखते हैं ज़रा। रीजन ई ये रहा हमारा, ठीक है। अब रीजन ई जो है आपका वो ब्लू वाली लाइन के ऊपर है। ब्लू वाली लाइन के ऊपर होने का मतलब कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ x, ठीक है। इज माई स्क्रीन ब्लर फॉर ऑल ऑफ यू और जस्ट सम ऑफ यू? बिकॉज मेरे पास तो इट शोज गुड। इट्स ओके राइट? अच्छा चलो मैं दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है। ओके, सो रीजन ई जो है आपका वो देखो ब्लू वाली लाइन से स्टार्ट करो तो ब्लू वाली लाइन के ऊपर है, ठीक है। सो दैट मीन्स y इज ग्रेटर देन हाफ x, ठीक है। फिर लेट्स टॉक अबाउट द ग्रीन लाइन। तो ग्रीन वाली लाइन के भी ऊपर है। ग्रीन वाली लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, सो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 8, ठीक है। फिर लेट्स टॉक अबाउट द रेड वाली लाइन विच इज द y एक्सिस, जिसकी इक्वेशन है x इक्वल्स टू 0, उसके राइट साइड पे, सो दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। एंड सिंस हमें कितनी बतानी थी, हमें 3 ही बतानी थी, 3 काफ़ी है। यू डोंट रियली नीड टू राइट डाउन y इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। लीजिए देखो टॉप राइट पे ना आपके पास एक ऑप्शन होगा, उस पे जाओ तो वीडियो सेटिंग्स क्या होता है, ठहरो लेट मी ओपन अप यूट्यूब वीडियो एंड टेल यू। कोई भी वीडियो खोलेंगे ना आप तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा, ठहरो लेट मी जस्ट शो यू। आपके पास नीचे सेटिंग्स में ना, नीचे सेटिंग्स पे जाओगे तो फिर आपके पास क्वालिटी का ऑप्शन आएगा। उस क्वालिटी को या तो 1080 कर दो या 720 कर दो, ठीक है, तो सही हो जाएगा। टॉप राइट पे, isn't it on bottom right? I mean at the bottom. खैर wherever it is, वहाँ जाके इसको ठीक करो, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन इज लाइंड अप। वेक्टर्स का मैंने स्केड्यूल पोस्ट किया है ना अपने इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे जाके देख लो। वेक्टर्स आई डोंट थिंक मैंने इसमें वेक्टर्स डाला है, लेट मी सी। उसमें मैंने अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन और वेक्टर्स दोनों नहीं है, ठीक है। सो देखो बेसिकली हियर्स इसके पीछे जो प्लानिंग है ना वो ये है। अच्छा ऑफ कोर्स अगर आप आईपैड से देख रहे हैं तो टॉप राइट पे होगा, यस। दो हमारे टेक्निकली पेपर 1 के टॉपिक्स हैं और 2 पेपर 2 के टॉपिक्स हैं, ठीक है। 2 पेपर 1 के जो आपके टॉपिक्स हैं वो है आपका ग्राफ्स ऑफ इनइक्वालिटीज एंड एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स, ठीक है, विच इज नेक्स्ट बाय द वे। और पेपर 2 के जो टॉपिक्स हैं वो है मेंसुरेशन एंड ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है। वंस वी आर डन विद दिस देन अगेन विल सिलेक्ट 2 पेपर 1 टॉपिक्स एंड 2 पेपर 2 टॉपिक्स, ठीक है। अच्छा देयर यू गो, ये भी हो गया हमारा। एंड that's pretty much it, you know, that's all there is in this topic। इसमें और ऐसे इतना कोई मुश्किल नहीं है। इसके मैंने कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो भी आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। एंड या that's it, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारी लाइव स्ट्रीम होगी, where am I based? I'm based in Karachi। Yes, this week you can send me that question. You can send it to me on Instagram, and be happy to solve it. Next is on the 7th of May, and that's angle properties of circles. ठीक है। फिर 9th May को mensuration करेंगे, ठीक है। Okay, so that's it, guys. I hope you guys benefited from this. ठीक है। So please share this with your friends, classmates, and do subscribe if you haven't. Okay. Yeah, I will do a live on mensuration. Don't worry about that. Tomorrow add maths. कल add maths तो है लेकिन it's not functions. Let me check. It is functions. Sorry, I just realized that. Sir, do you have add maths functions videos? Functions की मेरे पास videos नहीं है. Functions की मेरे पास कल हम वो कर रहे हैं ना, कल हम live stream कर रहे हैं functions. So क्या टेंशन है आपको? You're welcome. Chale guys, take care. See you guys tomorrow. 8th को mensuration कर सकते हैं। I know IGCSE वालों का 9th को है, लेकिन the thing is मैंने अपना जो कैलेंडर बनाया वो GCE के हिसाब से बनाया है। चलो कोशिश करते हैं कि मैं थोड़ा schedule चेंज करके ना, let me look into it, okay, let me look into it।
सेम टाइम, जो भी लाइव स्ट्रीम होगी सेम टाइम पे होगी, ठीक है. Any other topics you guys want me to live stream, you can reach out to me on Instagram and let me know, okay? On my Instagram पे occasionally I'm running interesting polls, so make sure that you guys answer to that also. Walaikum salam. Yeah, whatever schedule that I make, I will post it on YouTube as well as Instagram as well as Facebook, don't worry. I'm happy to help Hussein, happy to help. Jane, take care guys, have fun. Allah Hafiz.